गोसाई तव कृपा बले पाई चैतन्यनिताय तव कृपा बले पाई चैतन्यनिताय हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्टजुगा श्रीजीवा प्रभु लोकनाथ भट्टयुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण लाउडर प्लीज कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Louder. Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Gaura Hari Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Gaura Hari Nadiya Bihari Gaura Hari Mayapura Chandra Gaura Hari Nadiya Bihari Sati Mata Pranadhana Gaura Hari Vishnu Priya Pranadhana Gaura Hari Sati Mata Prandana Gaura Hari Vishnu Priya Prandana Gaura Hari Kali Yoga Avatari Gaura Hari Kali Malahari Gaura Hari Kali Yoga Hari Gaura Hari Nitayira Pranadhana Gaura Hari Patita Pavana Gaura Hari Nitayira Pranadhana Gaura Hari Patita Pavana Gaura Hari Gaura 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 Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Jaya Gaura Hari Gaura Hari Gaura Hari Jaya Gaura Hari Gaura Hari Gaura Hari Gaura Hari Jaya Gaura Hari Jaya Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram 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 Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai
गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि हरि बोल 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 हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गोपीनाथ ललिता विशाखा सखी की श्री श्री गिरधर गोपाल की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की श्री गौरांग महाप्रभु की यथाय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो गौर पूर्णिमा के महामहोत्सव फेस्टिवल को अभी हम जारी रखते हुए आज दूसरा दिन है और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं इस्कॉन एनवीसीसी पूना से श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु। हरि बोल। तो प्रभु जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। प्रभु जी एक सीनियर ब्रह्मचारी के रूप में इस्कॉन एनवीसीसी पुणे वहाँ पर सेवारत हैं। प्रभु जी ने इंजीनियरिंग का डिग्री किया है पूना के भारतीय विद्यापीठ कॉलेज से और रहने वाले हैं वो नवी मुंबई के, वहाँ उनका घर था। सन 1996 में प्रभु जी भक्तों के संपर्क में आए, इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आए। उसके बाद से उन्होंने अपना स्टडी वगैरह कंप्लीट करने के बाद सन 2000 या 99 में इस्कॉन पुणे में ब्रह्मचारी के रूप में ज्वाइन किया। तो पिछले 25 सालों से प्रभु जी इस्कॉन में ये सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनेक विभागों में सेवा की है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, डीटी वर्शिप और यूथ प्रीचिंग। विशेष करके प्रभु जी ने जो NIT वारंगल का जो प्रोजेक्ट है उसको इस्टेब्लिश किया है। वहाँ पे वो कॉलेज के जो प्रोफेसर होते थे उनके लिए भी प्रोग्राम लेते थे। उसके बाद अनेकों जगहों पे घूम कर प्रचार करने का प्रभु जी ने सेवा किया है और अभी भी काफ़ी जगहों पे प्रभु जी ट्रैवल करते हैं इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें गौर पूर्णिमा महामहोत्सव पे अपना संग देने के लिए प्रभु जी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गौर पूर्णिमा के एक दिन पूर्व के इस सायंकालीन सत्र में सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो बस प्रार्थना करते समय मुझे श्रील प्रभुपाद का एक डायरी जिसका नाम द बिगिनिंग से कुछ याद आया, तो सोचा वो पहले शेयर करें हम। तो प्रभुपाद जब 18 अगस्त 1965 में 70 साल की आयु में ये सनातन धर्म का प्रचार पूरे संसार में फैलाने के लिए अमेरिका जा रहे थे जलदूत पे, जलदूत नाम के एक कार्गो यानी मालवाहू जहाज के ऊपर। तो उन्होंने एक डायरी मेंटेन करते थे, रोज़ क्या हुआ। तो उसके अंतर्गत वो 48 दिन 13 अगस्त से 18 सितंबर तक का जो करीबन 48 दिन का जो प्रवास था उनका, तो उसका वर्णन आता है। और फिर वो पहुंच गए न्यूयॉर्क में, और फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने एक दूसरा डायरी मेंटेन करना शुरू कर दिया जिसका नाम था द बिगिनिंग। तो द बिगिनिंग यानी शुरुआत, कैसे हुई शुरुआत। तो प्रभुपाद रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ लिखते थे उसमें। काफ़ी बार तो कितना खर्चा हुआ, कितना ऐसे इधर इतना सेंट गया या इतना डॉलर्स में ये खरीदा और फिर होगा, और किसने कुछ दान दिया, या कुछ प्रचार के लिए कैसे यहाँ 5 लोग आए, वहाँ 8 लोग आए, या फिर मैं यहाँ चला गया, ऐसे काफ़ी वर्णन है। लेकिन आज की शाम का वर्णन 1966 की जो गौर पूर्णिमा हुई प्रभुपाद की, जैसे जानते हैं हम जन्माष्टमी उन्होंने मनाई 1965 में, क्योंकि वो निकले 13 अगस्त, थोड़े ही दिनों में जन्माष्टमी आया। तो क्या वो जन्माष्टमी सिर्फ वो अकेले हैं प्रवासी एक तरीके से, और एक तो मिस्टर कैप्टन पंड्या है जो उसके कप्तान हैं जहाज के, उनकी पत्नी थी, और 4 सेवक थे कुछ उठाने के लिए, माल उठाने के लिए। तो बस ये 6 लोगों को उन्होंने बुलाकर थोड़ा सा प्रवचन दिया जन्माष्टमी का, और फिर एक एप्पल था उसको काट के भगवान कृष्ण को अर्पण करके हर किसी को एक एक वो स्लाइस दे दिया उन्होंने। बस ये छोटी सी गौर पूर्णिमा रही, ये छोटी सी जन्माष्टमी रही। और दूसरे दिन तो उनका आविर्भाव दिन था प्रभुपाद का, लेकिन किसी को पता ही नहीं संसार में। वो कैप्टन पंडा वो तो प्रभुपाद ने मनाया ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं। तो देखिए हमारा जो बर्थडे होता है तो कितने जोर शोर से हम मनाते हैं। आप में से कौन है जिन्होंने आपके जन्मदिन मनाया ही नहीं? कुछ नहीं, ऐसे ही किसी को बताते नहीं आप, ऐसे ही दिन बीत जाता है, किसी को पता नहीं चलता। हाँ, कुछ 3 माता जी है और एक प्रभु है, शायद 2 प्रभु हैं, तो अच्छी बात है, आप प्रभुपाद के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। तो फिर बस 5-6 महीने के बाद जो 1966 की गौर पूर्णिमा के एक दिन पूर्व तो प्रभुपाद अपनी डायरी में क्या लिखते हैं कि आज अधिवास है, गौर पूर्णिमा कल है, तो एक दिन पहले अधिवास होता है, भगवान को करते हैं, अच्छे कपड़े वगैरह देते वगैरह। तो आज मेरे बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहनें मायापुर में और वृंदावन में बहुत बड़े संख्या में उपस्थित हुए होंगे गौर पूर्णिमा मनाने के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु का इस संसार में आविर्भाव।
तो वो बहुत बड़े संख्या में साथ में आए होंगे, महोत्सव मना रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। ये फैक्ट है। तो लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं। मुझे यहाँ मरना भी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज के वचनों के अनुसार यहाँ आया हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए। तो जो भी हो जाए, कुछ भी परिणाम ना निकले अच्छा, और मेरी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, तो भी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं नरक भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभुपाद के ऐसे वचन हैं। देखिए क्या प्रभुपाद का गौर पूर्णिमा रहा 1966 का, और हमारा क्या गौर पूर्णिमा है, कितना जबरदस्त मना रहे हैं हम गौर पूर्णिमा, सैकड़ों भक्तों के साथ, सुंदर विग्रह है, और क्या कुछ कल आप देखेंगे शान बान में एकदम माता जी लोगों ने बहुत परिश्रम करके गार्लैंड्स वगैरह बनाए, तो पूरा टेम्पल हॉल डेकोरेट करेंगे, बाहर ऑलरेडी वो गालीचे वगैरह बिछाए गए हैं, लाइट सब ऑन है, शायद सब बहुत कुछ हम धूमधाम से मना रहे। तो एक औरंगाबाद या संभाजी नगर की एक गौर पूर्णिमा, ऐसे संसार में 750 से अधिक इस्कॉन के मंदिर और सेंटर कितने हजारों है, तो इतना जोर धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन याद कर सकते हैं हम प्रभुपाद को 1966 में क्या उन पर, यानी क्या उनका स्थिति था, कोई है ही नहीं मनाने के लिए। किसको बताए, उधर किसी को पता ही नहीं गौरांग महाप्रभु कौन है, कृष्ण कौन है पता नहीं ठीक से, तो गौरांग महू तो बहुत दूर की बात रही, किसी को बता ही नहीं सकते। तो ऐसे प्रभुपाद ने हम सबके लिए इतना बलिदान किया है, तो उनके बलिदान को याद कर कर एक महाप्रभु के बारे में गीत है, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो के मने धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानात के। अधिक यदि गौरांग महाप्रभु नहीं होते, जिनका हम आविर्भाव मना रहे हैं कल, तो फिर इस संसार को कैसे पता चलता कि राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम की महिमा, प्रेम की जो सीमा है, तो वो कैसे पता चलता भला। तो गौरांग महाप्रभु का आना हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे जाके हम कह सकते हैं कि यदि प्रभुपाद न होई तो, अगर प्रभुपाद ही नहीं होते तो हमें कहाँ गौरांग महाप्रभु पता होते थे, कुछ पता नहीं चलता था हमें, है कि नहीं। कितने जनों ने गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु करके सुना था इस्कॉन में आने के पहले, हाथ ऊपर कीजिए। सुने थे आप, शायद बंगाल के होंगे काफ़ी सारे, तो हम तो महाराष्ट्र में वगैरह, हमें तो कुछ भी पता ही नहीं था। तो बड़ा सौभाग्य है हमारा कि प्रभुपाद से जुड़ने के कारण आज हम जान पा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो उनके बारे में श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के आदि खंड और मध्य खंड के पहले अध्याय के पहले श्लोक से जो मैंने प्रार्थना में गाया, तो वो कहते हैं, अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, अजानुलंबित भुजौ, उनकी भुजाएं इतनी लंबी है कि घुटने तक पहुंचती है। आप सब लगाइए अपने घुटने को, आपकी हाथ, देखिए आपके भी पहुंच जाते हैं, क्या बड़ी बात है। नहीं, अभी नहीं, बैठकर नहीं, खड़े होकर खड़े हो जाएंगे तो फिर हाथ अपने आप ऐसे ऊपर चले जाएंगे है कि नहीं। तो संभव ही नहीं कि आपके हाथ पहुंच पाएंगे, लेकिन ये महापुरुषों का एक लक्षण होता है, उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो वो घुटने तक पहुंचते हैं, तो उसको अजानुलंबित, लंबे इतने हैं कि जानू, ये जो घुटने हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो, ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों जो हाथ ऊपर करके खड़े हैं। तो कनकावदातो, उनके शरीर एकदम गोल्ड यानी सोने के समान है। संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ, तो एक बालक है, जैसे ये बालिका है, शायद पता नहीं क्या नाम है, दौड़ रही है, तो एक बालक है जिसका नाम है संकीर्तन, और ये बालक के दो पिता हैं। सामान्यतः एक बालक के एक ही पिता हो सकते हैं, लेकिन ये बालक है संकीर्तन, इसके दो पिता है, एक का नाम है गौरांग महाप्रभु, दूसरे का नाम है नित्यानंद प्रभु। तो संकीर्तनैक पितर कमलायताक्ष, उनकी जो आंखें हैं दोनों की, वो कमल की पंखुड़ी के समान बहुत ही सुंदर है। विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ, दोनों विश्वम्भर है। हालांकि कल हमने जैसे देखा चैतन्य महाप्रभु को उनके नाना जी, शायद यहाँ देखा या नगर में था, बताया शायद नगर में हमने बताया कि उनके नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती के द्वारा जो नामकरण संस्कार हुआ, तो उन्होंने उनको नाम दिया था विश्वम्भर, पूरे विश्व के सभी लोगों का ये पालन पोषण करेंगे, तो इसलिए विश्वम्भर। चैतन्य महाप्रभु आगे जाके जब बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा नाम विश्वम्भर सार्थक तभी होगा जब मैं संपूर्ण विश्व को
हरि नाम से भर दूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत ही बढ़िया महाप्रभु का ऐलान है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मेरा नाम ये नहीं अगर मैं ये कर न सकूं। यहाँ तक कि अद्वैत आचार्य भी कहते, मेरा नाम अद्वैत आचार्य नहीं अगर मैं वैकुंठ से भगवान को इस संसार में न लाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे भर शब्द है तो भरण पोषण वगैरह होता है ना, तो विश्वम्भर का वैसे मतलब नीलांबर चक्रवर्ती उनके नाना जी ने बताया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो बता रहे हैं वो बहुत अधिक अच्छा है, क्योंकि भर का दूसरा एक है भरना, भर देना, टू फिल इट विथ। एक विश्व को मैं पूरा भर दूंगा हरिनाम से, तभी मेरा नाम विश्वम्भर सार्थक होगा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते। तो चैतन्य महाप्रभु का तो बचपन का ही नाम नाना जी के द्वारा विश्वम्भर रखा गया था। लेकिन नित्यानंद प्रभु भी विश्वम्भर है, वो भी विश्व का पालन पोषण करते। विश्वम्भरो द्विजवरो, द्विज यानी दूसरा जन्म जो उनका होता है। हाल ही में हमारे भक्तों का कल ही यहाँ के बहुत सारे भक्तों का 15-20 भक्तों का ब्राह्मण दीक्षा हुआ है, तो उसको द्विज कहते हैं। पहला जन्म तो माता पिता से होता है, दूसरा जन्म जब गुरु उपनयन संस्कार के द्वारा उपवीत यानी जनेऊ देते हैं और गायत्री मंत्र देते हैं, तो उसको दूसरा जन्म कहते हैं। द्विज, दूसरा जन्म, दूसरी बार जन्म लेना। तो विश्वम्भरो द्विजवरो, द्विज में ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है दोनों, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो, ये संकीर्तन बालक को जन्म भी देते हैं ये दोनों गौरनिताय, और पालन भी करते हैं युग धर्म का। युग धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए इस कलयुग के प्रथम संध्या में ही, यानी कलयुग शुरू होने के बस 4500 साल ही हुए थे और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो, पूरे संसार को प्रिय है ये दोनों। करुणावतारो, करुणा के अवतार है। इनके जैसे करुणा वाले और कोई नहीं। सुबह हम जो देखे कि अगर सत्ययुग होता, त्रेतायुग होता, द्वापर युग होता तो हमारी क्या हालत होती। लेकिन कलयुग में वो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ही हैं, करुणा अवतार, जो हम सबको न तो नाखून से फाड़ देते हैं जैसे नरसिंहदेव ने फाड़ा, न तो हमें बाणों से तीरों से छलनी करते हैं जैसे राम जी ने छलनी किया, न तो हमें वो शिरच्छेद करते हैं जैसे कृष्ण ने सबके सर धड़ से अलग कर दिए, वो नहीं। लेकिन इन्होंने हमें हरि नाम लेने के लिए प्रयुक्त किया, हमें प्रेरणा दी। तो ऐसे हैं दोनों, बहुत ही कृपालु हैं। तो आज यानी कल हम चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन मना रहे हैं, तो कल थोड़ा टेक्निकल थोड़ा सा शुरुआत में चर्चा करेंगे, लेकिन आज थोड़ी लीला को ही देखेंगे हम। आगे श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो लिखा है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, उनके आदि लीला के 17वें अध्याय, जिसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु की यौवन अवस्था में लीलाएं। तो उनकी बाल्य लीलाएं, उनकी पौगंड लीलाएं, उनकी कैशोर लीलाएं और उनकी यौवन लीलाएं, ये वर्णन करते करते 17वें अध्याय में ये बहुत सुंदर तरीके से उनके यौवन लीलाओं का वर्णन करते हैं। यौवन यानी वो आयु जब 16 साल की उम्र से आगे यौवन कहलाया जाता है। जन्म से लेके 5 साल की उम्र तक बाल्य काल, फिर 6 से लेके 10 साल तक पौगंड, 11 से लेके 15 साल तक कैशोर किशोर अवस्था, और फिर 16 से आगे यौवन अवस्था। तो कहते हैं पहले श्लोक में, वंदे स्वैराद्भुतं तें तं चैतन्यं यत् प्रसादतः यवनः सुमनायन्ते कृष्ण नाम प्रजल्पकः। लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू श्री चैतन्य महाप्रभु। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को वंदना करता हूँ। बाय हुज मर्सी इवन अनक्लीन यवनस बिकम परफेक्टली वेल ब्रेड जेंटलमैन, कि उनकी कृपा से जो बहुत ही गंदे अस्वच्छ ऐसे यौवन है, तो वो पूरे परफेक्ट यानी बहुत ही परिपूर्ण ऐसे सभ्य पुरुष बन जाते हैं बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि उनको सबको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यवनों के द्वारा भी श्री चैतन्य महाप्रभु हरि नाम बुलाते हैं। सच इज द पावर ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसी उनकी शक्ति है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैत आचार्य की जय, और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की भी जय। कैशोर लीलार सूत्र करी लगणन, यौवन लीलार सूत्र करी अनुक्रम। मैंने किशोर अवस्था की महाप्रभु की लीलाओं का तो वर्णन किया है, अभी सुनिए
गौर लीला के ये अंतिम यानी यौवन अवस्था की उनकी लीलाओं का वर्णन करना चाहता हूँ। विद्या सौंदर्य सद्वेश संभोग नृत्य कीर्तनैः प्रेम नाम प्रदानश्च गौरव दिव्याति यौवने एग्जिबिटिंग हिज स्कॉलरशिप। इस यौवन अवस्था में महाप्रभु ने क्या क्या लीलाएं की, तो उन्होंने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किया। ब्यूटी, उनका सौंदर्य बहुत ही विशेष था। तो भगवान का हर किसी का यौवन अवस्था में हम देखते हैं, लड़कों लड़कियों का, तो जब यौवन अवस्था शुरू होती है तो शरीर में कुछ रूपांतरण होता है और शरीर विशेष रूप से सुंदर दिखाई देने लगता है। सभी का पाया गया है, मानवों का भी। लेकिन इसमें कृष्ण का अगर सुनेंगे आप नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रील रूप गोस्वामी बहुत विस्तार से वर्णन करते कि क्या क्या कृष्ण के शरीर के त्वचा में क्या क्या बदल हुए, यहाँ तक कि उनके बाल शरीर के ऊपर के उधर क्या, और फिर उनके सर के ऊपर के बाल, उनके आँख, उनकी नाक, उनकी छाती, उनकी कमर, इसमें क्या क्या रूपांतरण हुए बहुत सुंदर तरीके से श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। क्योंकि यौवन अवस्था में भगवान बहुत ही सुंदर, किशोर अवस्था में, तो उसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का भी उनके यौवन अवस्था में सौंदर्य अति अनुपम था, इसकी किसी के साथ उपमा दे ही नहीं सकते। एंड फाइन ड्रेस, कपड़े भी एकदम साफ सुथरे पहनते थे, सुंदर। लॉर्ड चैतन्य डांस्ड, वो नाचे एंड चैंटेड, और उन्होंने गाए हरि नाम एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड टू अवेकन डॉर्मेंट लव ऑफ कृष्ण। सबके हृदय का अंतर्गत जो कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है उसको जागृत करने के लिए सबको श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम वितरित किया। दस लॉर्ड श्री गौर सुंदर शोन इन हिज यूथफुल पास टाइम, इस तरह से उन्होंने अपनी यौवन लीलाओं को प्रदर्शन किया। यौवन प्रवेश अंगेर अंग विभूषण दिव्य वस्त्र दिव्य वेश माल्य चंदन। यौवन अवस्था में प्रवेश करते ही उनके अंग के विभूषण क्या थे, क्या क्या आभूषण, जैसे कि उनके दिव्य वस्त्र थे, वस्त्र बहुत सुंदर, पीताम्बर वो पहनते थे, दिव्य वेश, और उनके कपड़े भी बहुत ही सुंदर थे, और माल्य चंदन, माला सुंदर पहनते थे, और चंदन भी पहनते हैं, अपने शरीर के ऊपर चंदन लेपित करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये महाप्रभु की एक विशेषता है कि उनके शरीर को चंदन से लेपित किया जाता है। ये विष्णु सहस्त्र नाम जो है महाभारत के अंतर्गत वहाँ भी बताया है। सुवर्ण वर्ण हे मांगो वरंगस चंदनांगति निष्ठा संन्यासकृत शमो शांतः निष्ठा शांति परायणः। तो भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं उनमें से कुछ नाम यहाँ बताए गए। वो कहते हैं कि सुवर्ण वर्ण हेमांगो, महाप्रभु की जो कांति है वो सोने के समान, पिघले हुए सोने के समान है। क्योंकि राधा रानी की कांति जो है वही श्री चैतन्य महाप्रभु की कांति है। तो जब कृष्ण इस संसार में आए 5000 साल पूर्व, और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं इस धरातल पे प्रकट की, और उसके बाद तो वो चले गए। लेकिन उन्होंने गोलोक वृंदावन जाने के बाद सोचा कि अरे भाई, मैंने तो अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किया लेकिन कृष्ण प्रेम तो बांटा ही नहीं मैंने। विशेषकर राधा रानी मेरी सेवा में जो आनंद लूटी, वो आनंद तो मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ। सेवा हो रही थी मेरी राधा रानी के द्वारा, और राधा रानी जो सेवा करने वाली हो मुझसे अधिक आनंद प्राप्त की। तो ये क्या राज है? जिसकी सेवा हुई, आपको किसी ने खिलाया अच्छे खाद्य पदार्थों, तो आप ज़्यादा खुश होना चाहिए कि जो खिलाने वाला है वो ज़्यादा खुश होना चाहिए। आप ज़्यादा खुश होने चाहिए क्योंकि आपको खाने को मिला। तो जो खिलाने वाला, यानी इस केस में खिलाने वाली राधा रानी कैसे इतनी अधिक आनंदित हुई, तो ये राज मुझे जानना है। तो मुझे राधा रानी के भाव को लेकर प्रकट होना पड़ेगा इस संसार में, फिर से आना पड़ेगा कलयुग में इस धरातल पे। तो ये जब चैतन्य यानी कृष्ण ने जब ये सोचा, तो राधा रानी को ये वार्ता पता चली कि कृष्ण बहुत जल्दी धरातल पे जा रहे हैं मेरे भाव को स्वीकार कर कर। तो राधा रानी आई और कृष्ण से कही कि भगवान, आप जानते नहीं कि मैं आपके प्रेम में कितनी पागल हूँ। वो आप नहीं जानते, वो मैं ही जानती हूँ। तो आप जब मेरा भाव लेकर धरातल पे जाओगे तो कृष्ण के प्रति आपका जो प्रेम उमड़ आएगा, उसमें आप पागल होकर जमीन पे लोटपोट हो जाओगे, और उसमें आपके शरीर को पूरे खरोच वगैरह आ जाएगी। तो इसलिए ये उचित रहेगा कि मैं आपके शरीर को भी अपनी कांति से ढक दूं। तो इसलिए कहते हैं कि राधा भाव द्युति सुअलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा का भाव लेकर कृष्ण आना चाहते थे, तो राधा रानी ने उनको अपनी द्युति, अपनी कांति, अपनी प्रभा से भी आच्छादित कर दिया। तो जो श्याम सुंदर है, सावन के काले घने बादल के रंग वाले कृष्ण,
वो राधा रानी जो तप्त कांचन गौरांगी है, अपने रंग से कांति से ढक दी उनको, तो वो श्याम सुंदर बन गए गौर सुंदर, तप्त कांचन के वर्ण के समान। तो सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरंगस, हेमांग उनका अंग सुवर्ण है, वरंगस चंदनांगदी, अपने शरीर के ऊपर वो चंदन लेपित करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि कैसे बताया गया है कि उनके शरीर चंदन से ढका रहता था महाप्रभु का। और संन्यासकृत, भगवान का एक नाम है संन्यासकृत, संन्यास स्वीकार करते हैं। तो ऐसे कौन से भगवान है? क्या कृष्ण ने संन्यास लिया? राम जी ने वनवास गए 14 साल के लिए, लेकिन वापस आ गए, संन्यास नहीं लिया कभी उन्होंने ना। क्या नरसिंहदेव ने लिया? वराहदेव, कूर्मदेव, मत्स्यदेव, किसी भी भगवान ने कभी संन्यास नहीं लिया। तो एक ही है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये साबित करता है महाभारत का विष्णु सहस्त्र नाम कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण ही है, क्योंकि ये एकमात्र ही है भगवान जिन्होंने संन्यास लिया। संन्यासकृत क्षमो शांत, हाँ, तो वो पूरी तरह से इंद्रियों का यानी मन का दमन किया था उन्होंने। शांत और निष्ठा शांति परायण, तो निष्ठा थी उनकी भगवत नाम में, हरि नाम लेने में, और शांति परायण थे वो। तो ऐसे भागवत श्री महाभारत में ऐसे बताया गया है। दिव्य वस्त्र दिव्य वेश माल्य चंदन, विद्यार उद्धत्य कहो ना करे गणन, सकल पंडित जिनी करे अध्यापन। तो उनका जब शिक्षण हुआ तो इतना विद्वान थे वो कि वो हर किसी को परास्त करने में ही लगे रहते थे। सुबह हमने थोड़ी चर्चा की, सभी प्रकार के विद्वानों को उन्होंने परास्त कर दिया। सुबह हमने दिग्विजय पंडित को कैसे परास्त किया, उसकी कथा विस्तार से देखी। आगे कहते हैं कि वायु व्याधि छिले कैला प्रेम प्रकाश, भक्तगण लैया कैला विविध विलास। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे जैसे बताया कि जैसे वायु वात बढ़ गया। आपको पता है आयुर्वेद में 3 चीजें होती है, मेरे शरीर एक गोणी के समान है। ये गोणी 3 धातु से भरा हुआ है, कफ वात पित्त। तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो व्याधि बन जाती है। कफ वात पित्त में कुछ तो ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो हम व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो नाड़ी चेक करके ही समझ में आता है क्या कम या ज़्यादा हुआ है, और फिर औषधि दवाई देके उसको जो उचित मात्रा में डाल देते हैं और हम व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ऐसे प्रदर्शित किया कि उनके शरीर का वात अधिक बढ़ गया है। तो वात जिसका अधिक बढ़ जाता है तो उसको वातुल कहते हैं। फिर वो बांग्ला में बातुल बन जाता है, कि पागल हो गया, बाउला हो गया, ये पागल हो गया, जैसे बाउला भी कहते हैं उसको, आउला बाउला। तो पागल जैसे हो गए, सही है। जिसका वात बढ़ जाता है तो वो पागल जैसा हो जाता है। वात के कारण बहुत सारे हार्ट अटैक्स वगैरह भी वात के कारण होते हैं। तो आयुर्वेद में उसका बड़ा अच्छे से स्पष्टीकरण दिया गया है। तो ये वायु व्याधि छले कैला प्रेम प्रकाश, और इस वात के अंतर्गत वो पागल जैसे व्यवहार करते थे, तो वो पागल का व्यवहार नहीं था। असलियत में जो उनका कृष्ण प्रेम, क्योंकि राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो राधा रानी जो कृष्ण प्रेम का अनुभूति कर रही थी उसको उन्होंने प्रदर्शित किया, लेकिन लोगों को समझा ही नहीं। इतना पागल हो जाते थे, दूसरों के ऊपर हमला करने दौड़ जाते थे, तो लोग भाग जाते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि वो मूर्छित हो गए। एक बार ऐसे ही पागल की तरह, जैसे दौरा होता है ना, लोग व्यक्ति को हृदय का दौरा आता है वगैरह, तो ऐसे ये पागलपन का दौरा आकर वो जमीन पे मूर्छित हो गए। तो माता शची, उनकी माँ, थोड़ी दुखी थी कि क्या हो गया मेरे बेटे को, इतने जवान बालक हैं, जवान युवक है, और ऐसे पागलों की तरह दौड़ता है इधर उधर, कैसे होगा इसका आगे जाके। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर जो नवद्वीप के निवासी थे उनको बुलाया और बोले कि मेरे बेटे को क्या हुआ है, ज़रा देखिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो श्रीवास ठाकुर ने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा, बोले माता शची ये कृष्ण प्रेम से पीड़ित है, ये सबसे बढ़िया रोग है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा रोगग्रस्त हो जाऊं। तो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचितोपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरान परः। तो बहुत सुंदर श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु को जो श्लोक प्रश्न पूछे गए थे, उनके द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, उनके उत्तर जो एक भक्त ने दिए,
इसका सब प्रश्न उत्तर का कॉम्बिनेशन बन के ये श्लोक बना गया है। तो उन्होंने पूछा था कि सबसे आराधनीय कौन से भगवान है, तो उत्तर में बताया गया कि आराध्य भगवान व्रजेश तनयः, आराध्य यानी आराधनीय, जिनकी आराधना होती है, पूजा की जा सकती है। तो आराध्य भगवान कौन से हैं? व्रजेश तनय, व्रज यानी वृंदावन, 84 कोश 168 किलोमीटर का एरिया है पूरा वृंदावन, वो बहुत लंबा है, अग्रद्वीप से शुरू होता है वो, यानी आगरा से वो नीचे वगैरह होता है, तो बड़ी लंबी भूमि है वो व्रज की। तो व्रज ईश उसके जो स्वामी है नंद महाराज, उनके पुत्र तनयः, आराध्य भगवान व्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम। महाप्रभु ने आगे पूछा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है, क्योंकि भारत में हम देखते हैं कितने सारे धाम हैं, जगन्नाथपुरी धाम है, अयोध्या धाम है, पूरी द्वारका धाम है, तो ये सब में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो कि वो कहते हैं कि तद्धाम वृंदावनम, उनका धाम जिसका नाम है वृंदावन, ये सबसे प्रसिद्ध है। 12 वन है, वैसे तो वृंदावन में करोड़ों वन है, उसमें से 148 ढूंढ निकले गए जो प्रमुख है, उसमें भी 12 वन बहुत ही विशेष है, वो प्रमुख वन है। जैसे यमुना के पूर्व भाग में बेलवन, भांडीरवन, भद्रवन, लोहवन, महावन, ये 5 बलराम जी के नाम से ये वन है। और फिर यमुना के पश्चिम दिशा में मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन, वृंदावन, तो ये 7 वन है, 5 और 7 12 वन है, द्वादश कानन कहते हैं उसको। तो ये 12 में भी वृंदावन सर्वश्रेष्ठ माना गया। हालांकि सबसे बड़ा कोई है तो महावन है, उसके बाद थोड़ा छोटा लेकिन बड़ा ही है वो है काम्यवन। तो ये दोनों बहुत बड़े वन है। वृंदावन उतना बड़ा नहीं है जितना बृहद वन या महावन है, और उसके अलावा काम्यवन है, लेकिन वृंदावन की तो विशेष माधुरी है। तो इसलिए कहते तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। और सर्वश्रेष्ठ उपासना क्या है? रम्या काचित उपासना रम्या काचित उपासना व्रजवधु, व्रज की वधुओं के द्वारा, गोपियों के द्वारा कृष्ण की जो आराधना हुई, पूजा हुई, वो सर्वश्रेष्ठ है। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम। और वो कैसा भागवत है? पुराण अमल पुराण है, बाकी सब पुराण मल पुराण है। जैसे आप जानते हैं ये अधिक मास होता है, उसका एक नाम क्या है? मल मास, मल मास, वो गंदा माना जाता है एक तरीके से। इतना उसको धुतकार दिया था, दुर्लक्षित किया था कि वो बेचारा एकदम परेशान हो गया कि अरे क्या भाई, हमें तो 12 महीनों में, यानी चैत्र महीने से लेके फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष वगैरह, माघ, फाल्गुन, इसमें मेरा नाम ही नहीं है। 3 साल में एक बार मैं आता हूँ, और ये सब कहते हैं मुझे गंदा है। तो फिर भगवान के पास गए, भगवान ऐसा है, मुझे कोई स्वीकारता नहीं। तो भगवान बोले चिंता मत करो, मैं ही स्वीकारता हूँ, मेरे नाम से ही तो प्रसिद्ध हो जाएगा। तो उनका नाम क्या बना? पुरुषोत्तम मास। हाँ, तो ये अधिक मास जैसे है। हम क्या कह रहे थे? थोड़ा लिंक टूट गया। हाँ, वन तो हो गए। हाँ, अमल पुराण, तीसरे लाइन को देख रहे थे हम। तो कोई तो जागरूक होना चाहिए। आता सभी जागरूक है, लेकिन आपका भी थोड़ा परीक्षा होगा। परमात्मा मेरी परीक्षा लेंगे और आपकी भी परीक्षा लेंगे। तो रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है, इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं। मल क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 सबसे बड़े मल है, जो सभी पुराणों में यही बताया गया है। धर्म करो, उससे अर्थ मिलेगा, साधन संपत्ति मिलेगी, फिर उसके द्वारा काम, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, फिर उसके बाद मोक्ष के बारे में सोचेंगे। तो ये मल को श्रीमद् भागवतम शुरुआत में ही लात मारकर बाहर निकाल देता है। धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। शुरुआत में कहते हैं कि धर्म प्रोज्जित कैतवत्र, कैतव धर्म को, जो ये सब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बातें करने वाले जो पुराण है, उसको श्रीमद् भागवतम शुरुआत में ही लात मारकर बाहर निकाल देता है। तो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान। इधर बताया गया है कि प्रेम, कृष्ण प्रेम, ये पंचम पुरुषार्थ है। प्रेम पुमार्थो या पुरुषार्थो, पुरुष यानी पुम, पुरुष को पुम भी कहते हैं। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम एतम, तो पुम आर्थो यानी पुरुषार्थो।
तो 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष के परे जो है पंचम पुरुषार्थ प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतम इदम, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। तत्रादरा न परहा, उससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया गया है शास्त्रों में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम का प्रकाश कर रहे थे। ऊपरी रूप से ऐसे लग रहा था कि वात रोग बढ़ गया इनका, पागल हो गए। तो श्रीवास ठाकुर कहे माता शची चिंता की बात नहीं है, ये सबसे सर्वोत्कृष्ट चीज है। मैं चाहता हूं कि ऐसे कृष्ण प्रेम में मैं पागल हो जाऊं। तो उसके बाद जब श्रीवास ठाकुर मिलते हैं महाप्रभु से, जो थोड़े ऊपरी रूप से होश में आए हैं, तो कहते हैं श्रीवास सब नवद्वीप वासी सोच रहे हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, क्या ये सही है कि मैं पागल हो गया हूँ? श्रीवास कहते हैं नहीं, आपको कृष्ण प्रेम हुआ है, ये इतना अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि ये पागलपन थोड़ा मुझे भी आ जाए, मैं भी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाऊं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको कुछ रोग वगैरह व्याधि नहीं हुई है, आप स्वस्थ है। आप ही संसार में सबसे अधिक स्वस्थ है, बाकी सब बीमार है, क्योंकि आपको कृष्ण प्रेम हुआ है। तो फिर कहते हैं महाप्रभु उनको, अगर श्रीवास तुमने भी बोल दिया होता कि मैं पागल हो गया हूँ तो मैं गंगा में आत्महत्या कर देता था। बोले नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, आप उचित चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। भक्तगण अलैया कैला विविध विलास, और भक्तों के साथ उन्होंने बहुत लीलाएं की। आगे कहते हैं तबे त करिला प्रभु गया ते गमन ईश्वर पुरीर संगे तथाई मिलन। तो बाद में एक बार चैतन्य महाप्रभु जाते हैं गया। ऊपरी रूप से कारण बताते हैं कि पितरों का श्राद्ध, विशेषता उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा चल बसे थे इस संसार में, तो पिता के संस्कार करना एक होता है कि पिंडदान इत्यादि। गया में बहुत प्रसिद्धि है उसकी, गया में बहुत सारे स्थान है। तो वहाँ गयासुर को भगवान ने अपने पद के तल के नीचे दबोच दिया था। तो आज भी है। कितने जन गए हैं गया? कोई गए हैं? 2-3 दिन गए, मेरा नहीं हुआ जाना, तो भी सुन के पता है। तो फिर वहाँ पे पिंडदान के लिए महाप्रभु जाते हैं। तो उसमें भी चैतन्य मंगल में श्री लोचनदास ठाकुर एक कथा बताते हैं कि जब वो जा रहे थे गया की तरफ, तो एक गांव में एक पर्वत था, तो पर्वत में कुछ मंदिर था ऊपर, तो उसके दर्शन के लिए महाप्रभु ऊपर चढ़ते। तो नीचे जब आते हैं तो बड़े बुखार के साथ ही नीचे आते, तो उनको बड़ा बुखार चढ़ जाता है। कुछ उनके नवद्वीप के विद्यार्थी थे जो ब्राह्मणी थे, उनके साथ गए थे, गया जा रहे थे वो। तो जब बड़ा बुखार हुआ और उनके जो शिक्षक यानी निमाई पंडित, वो एकदम बिस्तर को लेट गए और दुबले पतले होने लगे, खा नहीं पा रहे थे, कुछ जो भी खाते थे उल्टी वगैरह हो रहा है। तो ये बच्चे बड़े परेशान हो गए कि गुरुजी क्या हालत होगा, अगर कुछ मृत्यु वगैरह हो गई तो क्या जवाब देंगे माता सची को वगैरह। तो बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने अपने शिक्षक को ही पूछा, गुरुजी को, गुरुजी आप तो ठीक ही नहीं हो रहे, हमें बड़ी चिंता लगी है, क्या आपको कोई उपाय पता है क्या जिसके द्वारा आप ठीक हो सकते हैं? कभी कभी ऐसा भी करते हैं, उसी व्यक्ति को पूछना पड़ता है। तो बोले हाँ, एक उपाय है और एक ही दवा है, वही काम करेगी, बाकी कुछ नहीं काम करेगी। बोले क्या है वो, बताइए, हम आपके लिए लाएंगे वो। बोले यहाँ के जो लोकल ब्राह्मण है ना, यहाँ के स्थानिक ब्राह्मण, उनके चरणों को धोकर उनका चरणामृत अगर मुझे पिलाए तो फिर मैं बुखार से मुक्त हो जाऊं। तो फिर वो सब बच्चे ऐसे बड़े आंखें हो गई उनकी। क्यों? महाप्रभु ने ये जानबूझकर किया, क्योंकि ये बच्चों में बड़ा अभिमान था कि हम बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, हमें बहुत कुछ वेद शास्त्र पता है। और जो स्थानिक ब्राह्मण थे उनकी अवहेलना, उनका एक तरीके से अपराध कर रहे थे, वो भावना थी इनके हृदय में। तो इनको सुधारने के लिए महाप्रभु ने लीला की, बुखार हो गया। तो फिर अभी उनको स्थानिक ब्राह्मणों के पास जाके भीख मांगने लगी कि पंडित जी थोड़ा सा आपके चरणों का चरणामृत मिल सकता है क्या? हमारे गुरुजी बहुत बीमार है और कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, तो आपके चरणों की अगर मिले पादोदक तो अच्छा रहेगा। तो फिर वो ब्राह्मणों ने, वो तो अच्छे स्वभाव वाले थे, उन्होंने दे दिया चरणामृत। और ये बच्चों ने सब लाया और महाप्रभु को पिलाए। तो जैसे ही पिए वो ब्राह्मणों का चरणामृत, तुरंत बुखार चला गया और स्वस्थ हो गए वो। तो किसको सुधारना था? महाप्रभु को कुछ बीमारी नहीं है, वो तो सच्चिदानंद विग्रह, ये बालकों को सुधारना था उनको। तो ये एक लीला हुई और बाद में वो गया जाते हैं। और गया में जब वो विष्णुपदी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इतना सुंदर वहाँ वातावरण था, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण आज भी है। तो गया जो राक्षस था, गयासुर, तो उसको भगवान ने अपने पाँव के नीचे दबोचकर जमीन के अंदर गाड़ दिया और पाँव को वैसे ही रखा। पाँव को वहीं पे रख के भगवान तो चले गए भगवत धाम। तो वो पाँव के जो स्थान है, वो पाँव का जो पद चिन्ह है आज भी है और उसको विष्णुपदी मंदिर कहते हैं।
तो महाप्रभु उसके दर्शन कर रहे थे। वहाँ ब्राह्मण लोग उसको दूध से, दही से, मक्खन से, जैसे कल यहाँ अभिषेक होगा तो बहुत सुंदर अभिषेक हो रहा था, अगरबत्ती का खुशबू था और मालाएं चढ़ाई जा रही थी, फूल अर्पण किए जा रहे थे, कितने सारे लोग आ रहे थे, मंत्रों का गायन हो रहा था। ये सब दिव्य वातावरण में महाप्रभु का मन एकदम बहुत प्रेरित हो गया था, बहुत वो अच्छा महसूस कर रहे थे। और अचानक वहाँ पे एक सन्यासी आ गए जिनका नाम था श्रीपाद ईश्वरपुरी। तो तुरंत उनको वंदना किए, बोले मेरा गया आना सार्थक हुआ। जो गया में आया हूँ अब तक सार्थक नहीं हुआ था, आपके जैसे महान दिव्य पुरुषों के दर्शन प्राप्त होने से ही तीर्थ यात्रा भ्रमण जो है वो सार्थक होती है। जैसे हम देखते हैं जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो दुर्योधन को समझा रहे थे, विशेषतः धृतराष्ट्र को समझा रहे थे विदुर जी कि ये युद्ध होना अच्छा नहीं है, सब मारे जाएंगे तुम्हारे पुत्र। तो दुर्योधन बड़ा क्रोधित होकर विदुर जी का अपमान करता है कि चाचा तुम इस युद्ध को रोकने का प्रयास मत करो, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। और इतना हो जाता है कि वो बोलते भी है उनको कि अभी आप इस वक्त तुरंत यहाँ से चले जाइए, अपने प्राणों को ही साथ में लेकर जा सकते, बाकी आपकी कुछ भी संपत्ति आप साथ में नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ तक कि अपना जो धनुष था विदुर जी का वो भी दरवाजे में छोड़ के वो चले जाते, क्योंकि धमकी दी थी दुर्योधन ने। तो वो तो भ्रमण करते रहे काफ़ी समय के लिए भारत के अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों का। तब तक यहाँ महाभारत युद्ध भी हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर राजा बने तो उनके दरबार में हस्तिनापुर में फिर से विदुर जी आए, धृतराष्ट्र अपने बड़े भाई का उद्धार करने के लिए। तो वो जब आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज बड़ा अच्छे उनका स्वागत करते हैं। अर्थात तो उनके चरण तो धोते ही हैं क्योंकि तीर्थ क्षेत्र का जाके आए। महाराष्ट्र में ये एक पद्धति है, आपको पता नहीं है कि नहीं, जो भी तीर्थ यात्रा भ्रमण करके आते हैं उनके चरणों पे सर रखते हैं और उनकी धूली लेते हैं। कितने जनों ने किया है ऐसे? हम बचपन से हमें ऐसे सिखाया गया था, जो भी तीर्थ यात्रा भ्रमण करके आता है उसके चरणों पे अपना सर रखने का और उसके चरण की धूली अपने सर पे रखने की। तो हमें बचपन से संस्कार दिए गए थे। तो फिर उनका स्वागत तो किया, आरती की, उनको खिलाए और फिर उनका एक गुणगान में श्लोक है, भवद्विदा भागवतास तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थे न गदाभृतः। तो कहते हैं कि भवद्विदा भागवतास, आपके जैसे जो भागवत है, भक्त भागवत, एक तो भगवान को भी भागवत कहते हैं, वो तो भगवत है, तो उसके अनुसार भागवत भक्तों का कहते हैं। भवद्विदा भागवतस, आपके जैसे महान भक्त, तीर्थभूत स्वयं विभो, आप तीर्थ ही है, चलते फिरते बोलते हुए तीर्थ क्षेत्री आप। इतना ही नहीं, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, आप एक तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ बनाते हैं। अन्यथा वो तीर्थ क्षेत्र सबसे बड़े पापी स्थान रहते हैं, क्योंकि सभी पापी लोग वहाँ के नदियों में जाके स्नान करके अपने सब पाप उसमें छोड़ देते। तो तीर्थ क्षेत्र बड़े ही पापी स्थान होते हैं। लेकिन महान शुद्ध भक्त जब जाके उसी नदी में स्नान करते हैं तो उसका मल भी हटा देते हैं और उसको पवित्र स्थान बना देते हैं। उसको असलियत में तीर्थ क्षेत्र कौन बनाता है? तो शुद्ध भक्त ही बनाते हैं। तो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतस्तेन गदाभृतः, क्योंकि आप आपके हृदय में हमेशा भगवान कृष्ण को वहन करते हो, तो इसलिए आप ही तीर्थ क्षेत्र हो। तो ऐसे वो महाप्रभु बोलते हैं अपने इनको ईश्वरपुरी को और कहते हैं कि कृपया आप हमारे घर में आइए और मुझे भिक्षा देने का एक सुअवसर प्रदान कीजिए। तो ईश्वरपुरी कहते हैं ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु का तो स्थान गया का नहीं था, नवद्वीप के थे वो, लेकिन वहाँ जब रह रहे थे कुछ दिनों के लिए तो एक ऐसा स्थान था, एक निवास जहाँ पे वो रह रहे थे। तो वहाँ दोपहर में उन्होंने कुकिंग किया, रसोई बनाई और भगवान कृष्ण को अर्पण करके भोग जो प्रसाद बना उसको निकाल ही रहे थे। और उसी समय ईश्वरपुरी आते हैं और कहते हैं शायद मैं उचित समय पे आया हूँ क्योंकि अभी प्रसाद तैयार हुआ है, तो अभी प्रसाद ले सकते हैं यानी। तो बोले हाँ जरूर जरूर, तो आप ये सब प्रसाद लीजिए, आपके लिए ही है। बोले नहीं, ये तो एक जन का ही बनाया है और वो तो आप अकेले ही दिख रहे हैं, तो मैं कैसे उसको ले सकता हूँ, तो ये उचित नहीं रहेगा, मैं नहीं लूँगा। बोले नहीं आप लीजिए, बाद में मैं फिर से कुकिंग करूँगा। बोले ठीक है, आधा लेते हैं, ईश्वरपुरी कहते। बोले नहीं आप पूरा लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आपके होने के बाद मैं खुद ही बना के ले लूँगा। तो गृहस्थों का धर्म होता है कि सन्यासियों को अपने घर में बुलाना और उनको प्रसाद खिलाना इत्यादि। तो चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श गृहस्थ भी थे, गृहीजन पालक, ऐसे उनका एक गुणगान किया गया है हमारे आचार्यों के द्वारा। गृहीजन पालक, जो गृहीजन है, गृहस्थ है, उनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ थे एक सर्वोत्कृष्ट गृहस्थ रहे वो।
इतना, जैसे हम बोलते हैं ना, हमें चाणक्य पंडित कहते हैं कि मातृवत परदारेषु, विद्वान व्यक्ति के 3 लक्षण होते हैं। क्या है वो? मातृवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी को माता के समान वो सम्मान देते हैं। अपनी पत्नी को कभी माता नहीं कहना। कभी कुछ इस्कॉन के गृहस्थ कभी कभी गलती कर देते, बोलते हमारी माता जी को देखा क्या? ये बोल दिया तो आपको संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी पत्नी को माता बोल दिया तो आप अभी गृहस्थ नहीं रहे, अभी आप संन्यास हो गए। पत्नी को छोड़ के हमारे आश्रम में आइए, जीवदेव प्रभु एक रूम दे देंगे आपको तो उनके रूम में रहिए। तो माता जी कभी गृहस्थ अपनी पत्नी को नहीं पुकारना चाहिए। अपनी पत्नी छोड़कर, मातृवत परदारेषु, पर दूसरे की पत्नी को माता के समान। और ब्रह्मचारी के लिए सभी, क्योंकि उसकी तो कुछ खुद की पत्नी है ही नहीं, तो उसके लिए सभी माताएं हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए अपनी पत्नी छोड़कर तो उनको माता के समान। और फिर लोष्ट्रव क्या है? परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरों का जो द्रव्य है, यानी उनके जो क्या कहते हैं, सोना चांदी तो ज़्यादा हो गया, पैसे वगैरह जो भी उनकी संपत्ति है वो गार्बेज यानी कूड़े कचरे के समान है, ऐसे जो समझता है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरों को अपने समान ही, जैसे अगर मुझे किसी ने चिमटा लिया तो तकलीफ होती है तो मैं दूसरों को चिमटा न लूँ। अगर मुझे किसी ने गाली दी तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं दूसरों को गाली नहीं दूंगा। आत्मवत सर्वभूतेषु, तो वो जो 3 प्रकार के व्यवहार होता है उसको पंडित कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने गृहस्थ आश्रम में अपने पत्नी के साथ भी, अन्य स्त्रियों को तो माता समान दर्जा तो देते ही थे और अंतर भी रखते थे सफिशिएंट, लेकिन अपने पत्नी के साथ भी पूरे गृहस्थ आश्रम में उन्होंने एक ही जोक किया है, एक बार ही परिहास किया। वो क्या? ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु एक रूम में थे और माता शची सब जो घर के जो चीज़ें थी वो दिख रही थी, ड्रॉवर में, इधर कबड़ में, इधर कुछ तो ढूंढ रही थी, को मिल नहीं रहा था कुछ तो निमाई पंडित देख रहे थे कि माँ इधर देख रही, उधर देख रही, इधर इधर सब ढूंढ रही है कुछ तो उनको मिल नहीं रहा है। तो क्या ढूंढ रही पता नहीं, लेकिन निमाई पंडित ने बोला, क्या बोले कि माता शायद जो जिस चीज़ को तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे बहू ने ली है। ये जोक है, आप कोई हंसे ही नहीं ये अपने पत्नी के ऊपर किया हुआ जोक है चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि थोड़े बाजू के कमरे में ही विष्णु प्रिया थी, तो वो अपने माँ को बोल रहे हैं कि जो ढूंढ रही हो शायद तुम्हारे बहू ने चुराई है, थोड़ा बाजू में कर दी वगैरह। तो वो सिर्फ हंसी वो अंदर विष्णु प्रिया, आप में से कोई नहीं हंसा। तो देखिए क्या ये जोक है, एक ही बार अपने गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी के ऊपर जोक किया, वो इतना इनडायरेक्ट है आपको समझा ही नहीं कभी। तो ये इतने स्ट्रिक्ट थे चैतन्य महाप्रभु, बहुत ही आदर्श उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। तो गृहस्थ के रूप में उन्होंने ईश्वरपुरी को कहा कि आप लीजिए और मैं बाद में रसोई बनाऊंगा फिर से। तो फिर वो परोसे, सब जो ईश्वरपुरी को बिठाया अच्छे से, उनको परोसा। खिलाने के बाद उन्होंने जब मुंह हाथ वगैरह धो लिए तो उनको लेटने के लिए एक स्थान दिया और उनके चरणों में बैठकर उनका मालिश भी किया, संवाहन, पाद संवाहन किया। उतने में लक्ष्मी देवी ने किचन में, रसोई घर में प्रवेश करके तुरंत सब कुछ बना दिया, क्योंकि अपने पति, लक्ष्मी देवी यानी साक्षात लक्ष्मी वैकुंठ की, क्योंकि भगवान तो उनके ही पति है, तो उन्हें सब कुछ बना दिया जिससे कि चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद लेने में देरी न हो जाए। और फिर उनके इस पाद सम्मान के बाद चैतन्य महाप्रभु भी प्रसाद लिए। और उस समय महाप्रभु उनसे चरणों में निवेदन करते हैं कि हे ईश्वरपुरी पाद, कृपया आप मुझे आपके शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मुझे आपका सेवक बनाने का आप अनुग्रह करें। तो फिर ईश्वरपुरी मान जाते हैं और उनको अपना शिष्य बनाते हैं। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हम सबके लिए आदर्श शिक्षक है। तो हालांकि भगवान है, लेकिन भगवान भी संसार में जब आते हैं तो एक गुरु को स्वीकार करते हैं, हम सबको बताने के लिए कि हमारे जीवन में कैसे गुरु, प्रामाणिक गुरु को, जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आता है, स्वीकार करना कितना अब क्या कहते हैं अपरिहार्य है। ये अटल है, ये करना ही होगा। आप में से कितने जनों ने गुरु स्वीकार किए हैं, प्रामाणिक गुरु, ये 4 परंपरा में, और कितने जन स्वीकार करना चाहते हैं, उस दिशा में प्रयत्नशील है। तो ये अच्छे सज्जन और सज्जनियों का ये वर्ता है कि गुरु का ग्रहण करना, गुरु को ग्रहण करना, क्योंकि गुरु के द्वारा हम इस भौतिक संसार के बाहर गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो फिर ईश्वरपुरी ने उनको दीक्षा दी। और जो मैंने सुबह जो श्लोक बताया, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण उपदेश करी तारयई जन, उनको बताया ईश्वरपुरी ने कि बस मेरे प्रिय पुत्र, क्योंकि जो शिष्य होता है वो पुत्र के समान,
अगर माता जी है तो पुत्री के समान होती है। गुरु हमारे पिता होते हैं, तो जो भी शिष्य या शिष्या उनसे दीक्षा लेते हैं तो गुरु को अपने पिता समान ही देखते हैं, पिता से भी अधिक बढ़कर होते हैं, क्योंकि जन्मे जन्मे सबे माता पिता पाए। हर जन्म में हमें अपने माता पिता मिल जाते हैं, लेकिन गुरु और कृष्ण बहुत ही दुर्लभ है, हर मानव जन्म में भी नहीं मिलते। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है प्रभुपाद की कृपा से इस मानव जन्म में हमें गुरु प्राप्त करने के लिए इच्छा हो रही है और गुरु प्राप्ति के लिए हम लालायित है, तो ये बहुत ही विशेष है। तो फिर वो कहते हैं कि बेटे तुम अपने जीवन में क्या करना है, आदेश क्या है, नाचो गाओ, भक्तों के संग में संकीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण उपदेश करी, दूसरों को कृष्ण उपदेश बताना चाहिए। ये महाप्रभु का भी हम सबके लिए निवेदन है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु हैया तारे ही देश। ये कुर्म ब्राह्मण को महाप्रभु ने आदेश दिया था। जब महाप्रभु, शायद हमने कल या आज सुबह चर्चा की थी, महाप्रभु जब कुर्म क्षेत्र में रहे उस ब्राह्मण जाओ और जिसको भी मिलते हैं उसको कृष्ण उपदेश करो, मेरी आज्ञा से आप गुरु बनो। आगे का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या कहते हैं, तबे कबू न बाधिबे तोमार विषय तरंग, पुनरपि यही ठाई पाबे मोर संग। अगर आप जिस किसी को मिलते हो उसको कृष्ण उपदेश बना देते हो और उस तरह से गुरु भी बनते हो, तो क्या होगा, कबू न बाधिबे तोमार विषय तरंग, विषय के जो तरंग है, माया की इतनी सारी, माया का ये भवसागर है, इसमें सारी इतनी तरंगे उठती है और हमें हिट करती है, हमें प्रभावित करती है, तो वो कभी भी तुम्हें बाधा नहीं करेंगी। कबू ना बाधी पे तुम्हारा विषय तरंग, पुनरपि यही ठाई पाबे मोरा संग, इसी स्थान पे तुम्हें मेरा फिर से दर्शन होगा, मेरे से मिलन होगा, मुझसे मिलन होगा तुम्हारा। तो देखिए दो वरदान है, जो भी जिस किसी को मिलता है कृष्ण उपदेश बताता है, और ये गृहस्थों के लिए विशेष, क्योंकि गृहस्थ ही थे वो कुर्म ब्राह्मण, और वो एक तरीके से सन्यासी जैसा बनना चाह रहे थे महाप्रभु के पीछे जाके। महाप्रभु ने कहा नहीं, आपको गृहस्थ आश्रम में रहना है, लेकिन जिस किसी को मिलते हो, और गृहस्थ लोगों को कितने जनों को मिलना पड़ता है, शायद हमारे ब्रह्मचारियों को इतने जनों को नहीं मिलने को मिलता, आश्रम में रहते काफी बार ब्रह्मचारी, गुरुकुले वसन, गुरुकुल में रहते तो बाकी सब बच्चे ही रहते, बाहर लोगों को इतना प्रचार नहीं करते। अभी हमारे संस्था में, इस्कॉन में सन्यासियों का जो कार्य है प्रचार, वो सन्यासियों का कार्य है, ब्रह्मचारियों का नहीं, लेकिन सन्यासियों की कमी होने के कारण ब्रह्मचारियों को काफी हद तक प्रचार करना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मचारियों सन्यासियों की कमी है, नहीं तो फिर सन्यासियों का प्रचार कार्य है। तो लेकिन गृहस्थों के लिए क्या है, उनके लिए भी बताया गया है कि जिसको मिलते हैं, गृहस्थ बहुत लोगों को मिलते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ता है, उनको सब्जी खरीदनी पड़ती है, उनको बाहर जाके दूध खरीदना पड़ता है, कितने लोगों से संपर्क होता है, और उनके फिर परिवार वाले भी होते हैं, उनके परिवार वाले, उनके पत्नी के परिवार वाले, फिर पत्नी के भाई के पत्नी के परिवार वाले, इतने सारे हजारों रिश्ते उनके, तो बहुत लोगों को मिलते हैं। तो इसलिए सबको प्रचार करने के लिए आदेश है, और उसके द्वारा कभी भी विषय तरंग प्रभावित नहीं करेंगे, और महाप्रभु के नित्य दर्शन जहाँ आप कहीं है, आपके घर में, आपके गांव में, वहीं पे वो प्राप्त होंगे। तो इस तरह से उन्होंने उनको बताया। तो यहाँ भी ईश्वरपुरी ने उनको बताया कि नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण उपदेश करी, सबको कृष्ण का उपदेश करो, तार ये जन, सबका उद्धार कर दो। तो आगे यानी थोड़ा पीछे बोल सकते हैं आप, 7वें अध्याय जो है इसी आदि लीला के अंतर्गत और एक लीला का वर्णन बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे, यानी जब वो जा रहे थे जगन्नाथपुरी में संन्यास के बाद रह रहे थे, तो जब 3 बार उनके प्रयास रहे वृंदावन जाने के। पहला तो जब गया में उनकी दीक्षा हुई, जिस दिन जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसी रात को रातों रात महाप्रभु भागकर जाने लगे, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। रात में अंधेरा है पूरा, और दौड़ते ही जा रहे वृंदावन की तरफ। क्या अंधेरा अंधेरा, पता नहीं कैसे आता, भगवान को सब कुछ पता है। वृंदावन वृंदावन करके जा रहे थे, तो अचानक एक आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु, ये वृंदावन जाने का उचित समय नहीं है। अभी तो आपने नवद्वीप में संकीर्तन लीला भी प्रारंभ नहीं की है, तो पहले आपको वो करना है, और उचित समय आएगा जब आप वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। हम तो आपके दास हैं, बस आपको एक याद दिला रहे। तो सब देवता थे, देवी देवता, जो
अनएम्बॉडिड साउंड, यानी क्या कहते हैं, शरीर के बिना आकाशवाणी जैसे सिर्फ आवाज़ आता है। तो वो आवाज़ हुआ तो महाप्रभु फिर बोले ठीक है, ये उचित समय नहीं। तो फिर वो वापस आते हैं रात में ही। तो यहाँ उनके सब जो ब्राह्मण बालक थे उनके साथ वो ढूंढ रहे थे, कहाँ गए गुरुजी, कहाँ गए गुरुजी, रात में क्या हुआ। अभी महाप्रभु आते थे, उनकी जान में जान आ जाती, आप आ गए, ठीक है। तो ये पहला उनका प्रयत्न रहा वृंदावन जाने का। दूसरा संन्यास के बाद, जब जैसे ही संन्यास हुआ उनका कटवा में, कंटक नगर में श्रीपाद केशव भारती के द्वारा, तो बाल वगैरह मुंडवा दिए, सन्यासी के कपड़े पहने, उनका नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य। अपने गुरु को साथ में लेके उन्होंने कीर्तन किया। तो गुरु ने अपना कमंडलू, अपना दंडा किधर फेंक दिया उनको भी पता नहीं चला, गुरु को नचाया उन्होंने। तो बहुत अच्छा कीर्तन हुआ और आगे जाने लगे तो गुरु भी उनके पीछे पीछे बोले नहीं नहीं आप रहिए आपके आश्रम, हम चलते। तो फिर नित्यानंद प्रभु के साथ वो आगे निकलते, चंद्रशेखर आचार्य। तो आगे जाते जाते बस एक ही उनको रट लगी हुई है, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन ही जाना है उनको बस, और किधर नहीं। तो ऐसे इतना भटकते थे गौड़ देश में, राड़ देश में, कि जाते थे वृंदावन वृंदावन वृंदावन, आगे जाते थे और लोगों को पूछते थे वृंदावन किधर है। बोले अरे रे 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 आपने बड़ी गलती कर दी, वो पीछे रह गया, 3 घंटे पीछे आपने वो वृंदावन का रास्ता छोड़ दिया, तो पीछे जाइए पीछे। तो फिर से मुड़ते थे पीछे, हरि नाम करते करते जाते थे, नाचते गाते वगैरह नित्यानंद प्रभु के साथ, और इधर आते थे और लोगों को पूछते थे वृंदावन, अरे रे इधर नहीं, उल्टी दिशा में, आप वृंदावन का जो रास्ता है वो 6 घंटा पीछे रह गया, आप इतना आगे क्यों आए, पीछे जाना है। तो ऐसे करते करते वो जा रहे थे। तो एक जगह पे नित्यानंद प्रभु ने एक योजना बनाई, वहाँ के कुछ ग्वाल बाल बच्चे थे, उनको बताया देखो अभी एक सन्यासी आएगा, वो तुम्हें पूछेगा वृंदावन का रास्ता किधर है, यमुना किधर बहती है, तो ये जो शांतिपुर का रास्ता है ना वो दिखाना, और वो जो गंगा है ना वो रास्ता दिखाना। तो बच्चे बोले ठीक है। तो फिर थोड़ी देर में चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका तो नाचना गाना वो चल रहा था। और आए, ये बच्चों को देखा, बोले बच्चों यहाँ वृंदावन किधर है, कौन सी दिशा में, और यमुना किधर है। तो बच्चों को जैसे पढ़ाई गई थी पट्टी, तो उन्होंने बताया कि ये है ना ये रास्ता साधु महाशय, ये रास्ता जाता है वृंदावन की तरफ और यमुना उधर ही आगे मिलेगी आपको। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बस पास में ही है। और जाते हैं तो एक नदी दिखती है, अरे यमुने सूर्य पुत्री, सूर्य की पुत्री यमुना, और छलांग लगाते हैं और स्नान कर रहे हैं और यमुना का गुणगान करते हैं कि कितना सौभाग्य है मेरा, यमुना में स्नान कर रहा हूँ इत्यादि वगैरह। और थोड़ी देर में देखते कि उस तरफ से, उस तीर से एक नौका में सवार होके अद्वैत आचार्य आते। बोले अरे अद्वैत तुम इतने जल्दी वृंदावन कैसे पहुंचे, तुम्हें कैसे पता कि मैं वृंदावन में आ गया, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए शांतिपुर से उधर। बोले महाप्रभु ये वृंदावन नहीं, ये शांतिपुर है, और ये गंगा, ये यमुना नहीं, ये गंगा है। तो महाप्रभु इतने क्रोधित हो जाते, अरे मुझे फंसाया गया, वो नित्यानंद प्रभु ही होंगे जिन्होंने मुझे ऐसे फंसा दिया करके। तो अद्वैत आचार्य उनको सांत्वना करते, नहीं नहीं महाप्रभु आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये जो आप जहाँ है महाप्रभु वही वृंदावन है। क्योंकि कृष्ण के बारे में बताया गया है, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, कृष्ण कभी भी वृंदावन से बाहर एक कदम नहीं जाते, भाव रूप में हमेशा ही कृष्ण वृंदावन में रहते। आज भी वृंदावन में है कृष्ण, अगर आप शुद्ध हृदय वाले हैं तब आपको वृंदावन में कृष्ण के दर्शन आज भी मिलेंगे। कभी भी जाइए वृंदावन आपको मिलेगा। अर्थात वृंदावन एक स्थान तो है ही, पवित्र स्थान, लेकिन इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक चेतना का स्तर है, जिस चेतना ऊपर 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 जाते, जब वृंदावन के फ्रिक्वेंसी के साथ आपके हृदय की फ्रिक्वेंसी हो जाती है तो आपके हृदय में ही आप वृंदावन पाओगे। वो कहते हैं कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हाम हेरिबो श्री वृंदावन। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि जब मैं विषयों को, जैसे आँखों के लिए सुंदर चीज़ों को देखना, कानों के लिए मधुर संगीत सुनना, जीवा के लिए स्वादिष्ट पदार्थ चखना, और फिर नाक के द्वारा खुशबूदार पदार्थों को सूंघना, और त्वचा के द्वारा जो भी कुछ इंद्रिय तृप्ति है वो जो है, तो विषयों के प्रति मेरी जो वासना है उसको मैं छोड़ दूँ। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा तबे हाम हेरिबो, तब मैं देख पाऊंगा श्री वृंदावन। सब जगह पे वृंदावन दिखेगा। रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु हमेशा कहते थे मोर मन वृंदावन, मोर मन वृंदावन, अन्येर हृदय मन मोर मन वृंदावन। अन्यों के लिए उनका हृदय मन होता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा मन वृंदावन ही है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा गुणगान करते थे। तो महाप्रभु आप जहाँ है वो वृंदावन ही है। और एक तरीके से देखा जाए तो आप
यमुना में ही स्नान कर रहे, क्योंकि जब गंगा और यमुना बहते बहते जब प्रयागराज में आती हैं, वहाँ त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं। तो अभी मिल गई वो तीनों नदियाँ, तो अभी पानी आगे जो जा रहा है, तो ऐसे कहना है कि जो पूर्व दिशा से बहती है वो गंगा है और पश्चिम दिशा से जो बहती है वो यमुना है। तो आप पश्चिम दिशा में ही, पश्चिम तीरे ही स्नान कर रहे हैं, तो आप यमुना में ही स्नान कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी बहुत देरी हो गई, आपने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है क्योंकि संन्यास लेने के बाद। तो आइए मेरे घर शांतिपुर आइए, ये सूखे कपड़े हैं आपके लिए, सन्यासी वस्त्र पहन लीजिए और शांतिपुर चलिए, वहाँ प्रसाद आपके लिए तैयार है करके। तो महाप्रभु को वो लेके जाते हैं। तो वो उनका दूसरा प्रयत्न रहा वृंदावन जाने का। और तीसरा प्रयत्न रहा जब वो सन्यासी बनने के बाद जाते हैं, लंबी कथा है, लेकिन वो रूप सनातन गोस्वामी का उद्धार करने के लिए असलियत में राम केले ही जाना चाहते थे, जो थोड़ा बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे है। तो बॉर्डर से अंदर जाने के बाद है। और दिल्ली तो इस तरफ है, वृंदावन जहाँ जगन्नाथपुरी है, ऐसे वृंदावन के लिए जाना चाहिए, भारत का नक्काशा देखेंगे तो। लेकिन महाप्रभु ऐसे ऊपर की दिशा में गए क्योंकि उनको रूप और सनातन, ये उनके जो नित्य संगी है, जो ललिता जो रूप मंजरी है और लवंग मंजरी है, उन दोनों को उद्धार करने के लिए जाना था। लेकिन ऊपरी रूप से बोल रहे वृंदावन जाना है, तो वृंदावन गए ही नहीं वो। तो ये 3 प्रयत्न रहे उनके वृंदावन जाने के। लेकिन अंततोगत्वा वो बाद में जब वृंदावन असलियत में गए 1515 में, जब उनकी उम्र 29 उम्र थी महाप्रभु की, 1486 में वो प्रकट हुए इस संसार में, फाल्गुन पूर्णिमा जो कल हम मनाएंगे। तो लेकिन 1515 में जब वो 29 उम्र के थे, तब असलियत में जब वृंदावन जा रहे थे, प्रयागराज के बाद जब वाराणसी पहुंचे, तो वहाँ उन्होंने सुना एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे। ऐसे हुआ कि वहाँ मुगलों का राज वगैरह था, लेकिन वहाँ के जो असली अधिष्ठाता देवता है पूरे वाराणसी के, वो काशी विश्वनाथ नहीं, बिंदु माधव है। तो ये बिंदु माधव मंदिर पेशवाओं के अंतर्गत था, जो महाराष्ट्र के पुणे के वगैरह। तो वो पेशवाओं ने अपने कुछ ब्राह्मणों को, महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को वहाँ नियुक्त किया था बिंदु माधव भगवान की सेवा के लिए। तो वो पीढ़ी में आ रहे थे, तो 500 साल पूर्व की बात है। तो वहाँ फिर ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था, उन्होंने महाप्रभु को बताया कि यहाँ का एक सन्यासी है प्रकाशानंद सरस्वती, उसके 60,000 सन्यासी शिष्य है और आपको बहुत कोसता है। कहते हैं ये भावुक सन्यासी, हाँ नाचता है गाता है, और ऐसे थोड़े नहीं करते हैं। जो सन्यासी होते हैं उनको वेदों में वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, वेदांत वाक्य में जो रमण करते हैं हमेशा, वो सन्यासी होते हैं, वो असलियत में ज्ञानी होते हैं। सदा रमन्त कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, जो वैरागी है वो बड़े भाग्यशाली है। ऐसा वो अपना अपना ही गुणगान करते रहते हैं। तो महाप्रभु को निंदा करते हैं, तो महाप्रभु बस हंसते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। फिर प्रयागराज से आगे, वाराणसी से आगे वृंदावन होते हैं, 2 महीने रहते हैं उधर, कार्तिक महीना वगैरह। बाद में वापस आते समय फिर से वाराणसी में रुकते। तो अभी यहाँ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फिर से उनसे मिलते हैं, क्योंकि मुझे सहन नहीं हो रहा, ये इतने सारा आपका अपराध कर रहे हैं। तो उनको मैंने न्योता दिया है प्रसाद के लिए, तो आपको भी निवेदन करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मायावतियों के बीच उनके साथ संग नहीं करना चाहते और बाहर का आप किसी का खाना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन उनके उद्धार हेतु कृपया ये मेरा निवेदन, आमंत्रण स्वीकार कीजिए। तो महाप्रभु स्वीकारते हैं और जाते हैं। महाप्रभु तो जाते हैं, बड़ा महल, बड़ा भवन रहता है, जिसमें वो प्रकाशानंद सरस्वती अपने 60,000 शिष्यों के साथ, सन्यासी शिष्यों के साथ बैठा है। तो बाहर, ऐसे भवन के बाहर अपने पाँव धोने के लिए एक जगह होती है। तो महाप्रभु अपने पाँव धोते हैं उधर और वहीं पे बैठ जाते हैं। यानी वो गंदी स्थान है ना, गंदा स्थान है, लेकिन महाप्रभु उधर ही बैठ जाते हैं। कितने नम्र है। और साथ ही साथ यथामाम प्रपद्यन्ते, ये जो मायावादी लोग हैं, इनका तो ब्रह्मन करके जो ब्रह्म ज्योति है उनके प्रति आकर्षण। तो महाप्रभु ने अपने शरीर से एक दिव्य ज्योति बाहर निकाली, जो बड़ी दैदीप्यमान थी, प्रकाशमान कर दी पूरा आजू बाजू में। तो वो देखकर ये मायावादी सन्यासी एकदम चकित हो गया, अरे क्या सन्यासी, कितना प्रकाश। तो वो सब आए दौड़ के, प्रकाशानंद सरस्वती, और कहे महाशय आप इतने गंदे जगह पे क्यों बैठे हैं, आइए अंदर आपके लिए स्थान है, यहाँ मत बैठिए, ये गंदा स्थान है। महाप्रभु कहे नहीं नहीं, आप तो एकदम उच्च कोटि के सन्यासी हैं, आप तो पूरी प्रकाशानंद सरस्वती है, मैं तो भारती वाला। सन्यासियों में भी स्तर होते हैं अलग अलग, 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं, जैसे पर्वत, नद, और फिर पूरी, भारती, सरस्वती, ऐसे अलग अलग उनके प्रकार होते हैं। तो महाप्रभु ने जो सन्यास लिया था केशव भारती से, तो थोड़ा नीचे का दर्जा है वो, और ऊपर होते पूरी, सरस्वती इत्यादि।
तो ये प्रकाशानंद सरस्वती था, तो उसको बड़ा अहंकार था, तो महाप्रभु उसके अहंकार को ही इस्तेमाल करके कहते हैं आप तो बड़े सन्यासी हैं, मैं तो निचले दर्जे का सन्यासी हूँ, मैं कैसे आपके साथ बैठ सकता हूँ। वो कहते हैं नहीं महाशय, आपको ऐसा उचित नहीं है। तो उनका हाथ ही पकड़ते महाप्रभु का, जानबूझकर महाप्रभु नम्रता दिखाते हैं जिससे कि वो सेवा करेगा, और महाप्रभु का हाथ पकड़कर वो थोड़ा प्रेम से खींचता है, नहीं अंदर हमारे साथ बैठिए, ये स्थान उचित नहीं है आपके लिए, सन्यासियों को ऐसे गंदे स्थान पे नहीं बैठना चाहिए। तो इसके द्वारा सेवा करने से ही उसका हृदय शुद्ध हो गया। फिर महाप्रभु के साथ वाद विवाद भी होता है और महाप्रभु उसको शुद्ध भक्त बना देते हैं। वो और उसके 60,000 सन्यासी शिष्य सब भक्त बनते हैं। हरि वो देखिए महाप्रभु कितनी शक्तिशाली प्रचारक है। सन्यासियों को, वो भी मायावादी सन्यासियों को, इतना वो नहीं है, संभव नहीं है, बहुत पावरफुल रहते वो लोग, वेदों में बहुत पंडित रहते हैं। मायावादी कृष्ण अपराधी रहते हैं। मायावादी भाष्य सुनी ले, हय सर्वनाश, महाप्रभु ने कहा सत्यानाश हो जाएगा अगर मायावादियों से कुछ सुनेंगे हम, वेदों के ऊपर ही, क्योंकि वो सब वेदों को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। लेकिन महाप्रभु ने इनका उद्धार भी कर दिया, उनको भक्त भी बना दिया। पूरे काशी में महासंकीर्तन होने लगा, ये सन्यासी लोग लीड करते थे, क्योंकि महाप्रभु का ये जबरदस्त प्रचार रहा। फिर महाप्रभु ऐसे 3 बार प्रयास किए और चौथी बार सही में उन्होंने उद्धार किया। तो यहाँ उनके चर्चा में एक प्रकाशानंद सरस्वती उनको एक बात कहते हैं कि अरे आप भाव उद्धार होने के पहले आपने कैसे ऐसे ये बालकों के, स्त्रियों के समान नाचते रहते हैं आप सड़कों के ऊपर, ये उचित नहीं है सन्यासी के लिए। सन्यासी को तो वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए गए हैं। आपको शास्त्र पढ़ने चाहिए, दूसरों को पढ़ाने चाहिए। ये क्या आप बालकों की तरह, स्त्रियों की तरह नाचते गाते रहते हैं, भावुक की तरह, तो ऐसा क्यों? ऐसा उनको प्रश्न पूछते हैं, ऑब्जेक्शन लेते हैं उनके ऊपर। तो महाप्रभु क्या कहते हैं कि जब मेरी गुरु से मेरी दीक्षा हुई ईश्वरपुरी से, तो मेरे गुरु ने मुझे क्या बोला कि बेटे देखो ये वेदांत शास्त्र वगैरह है ना, वेद सूत्र, ये तुम्हें नहीं जमेगा। वेदांत सूत्र तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो तुम बस भगवान का हरि नाम लो, उतना ही काफी है तुम्हारे लिए, बाकी ये तुम्हें नहीं जमेगा। तो इसलिए गुरु के आदेश के अनुसार फिर मैं अपने घर में आने के बाद हरि नाम लेने लग गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हरि नाम लेते गया। थोड़े दिनों में क्या हुआ, मेरे आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मेरा शरीर थर थर कांपने लग गया, मैं जमीन के ऊपर लोटपोट होने लग गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या हो गया, पागल जैसे हो गया। तो फिर से मैं अपने गुरु महाराज के पास गया और उनको पूछा कि बा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल, जपीते मंत्र मन करीला पागल। अरे गोसाई जी आपने किस प्रकार का मंत्र दिया है और उसका कितना शक्ति है, जैसे मंत्र जप करता जाता हूँ तो मेरा मन पागल हो रहा है, क्या हो गया मुझे, पागल तो नहीं हो गया ना मैं। तो ईश्वरपुरी कहते हैं अरे बेटे ये तो जीवन की परिपूर्णता है, सबसे चरम उपलब्धि तुम्हें प्राप्त हुई है, कृष्ण प्रेम, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया पुत्र, सार्थक हो गया। और क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो तो मेरा भी जीवन सार्थक हो गया। कैसे महान शिष्य प्राप्त हुआ जिन्होंने अपने मानव जीवन की परिपूर्णता प्राप्त की, कृष्ण प्रेम प्राप्त किया। तो गुरु का भी सार्थक होता है जीवन जब शिष्य शुद्ध भक्त बन जाता है। और उसी समय उन्होंने ये उनको उपदेश दिया था, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्णोपदेश करी तार यही जन। तो महाप्रभु ऐसे प्रकाशानंद सरस्वती को बताते हैं। तो ईश्वरपुरी संगे तथाई मिलन, तो जब वो गया में थे तो ईश्वरपुरी के साथ उनका मिलन हुआ। और फिर आगे कहते हैं दीक्षा अनंतरे हैल प्रेमेर प्रकाश, देशे आगमन पुनः प्रेमेर विलास। तो उसके बाद महाप्रभु गया में जो दीक्षित हो गए श्रीपाद ईश्वरपुरी से, उसके बाद उन्होंने कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वही तो कृष्ण ही है, कृष्ण प्रेम राधा रानी का भाव लेके तो आए ही है, लेकिन ऊपरी रूप से विद्वान थे अभी तक, निमाई पंडित। अभी पहली बार दीक्षा के बाद उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदर्शित किया, वापस नवद्वीप आए और उनने संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया। ओके, तो यहीं पे विराम देते हैं फिर। तो आपका कोई प्रश्न? महाप्रभु की तो लीलाएं अनंत है, कहाँ शुरू करें कहाँ अंत करें ये समझना ही मुश्किल है। लेकिन थोड़ी जो चर्चा की उसके बारे में आपको प्रश्न है तो आपके प्रश्न नहीं तो मैं आगे 1-2 घंटा और बोल सकता हूँ तो अच्छा रहेगा, आप प्रश्न पूछे।
आपके हित में होगा। पूछिए पूछिए। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक पास्ट टाइम सुना था कि चैतन्य महाप्रभु अपने मित्र के साथ नौका विहार कर रहे थे, तो और उन्होंने एक ग्रंथ बताया अपने मित्र को कि ये मैंने रचित किया हूँ। तो उनका ग्रंथ जब देखा उनके मित्र ने, तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे कि बोले तो आपने इतना अच्छा लिखा, तो मैंने भी ये ऐसा ग्रंथ, मेरा कौन पढ़ेगी। तो उन्होंने इमीडिएट फेंक दी। हाँ, गंगा में फेंक दिया। हाँ, तो प्रभु जी उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, वही आपने बता दिया पूरा। एक तरीके से कुछ बचा नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि महाप्रभु कितने उदार है। अपने मित्र के ग्रंथ को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उनके ग्रंथ कुछ काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि निमाई पंडित थे, पूरे नवद्वीप में विद्वान थे, पूरे पृथ्वी के ऊपर उनके जैसा विद्वान कोई है ही नहीं। तो उनका ग्रंथ जब लिखा है उसी विषय के ऊपर, व्याकरण का कोई तो भाग, तो फिर इनका मित्र का ग्रंथ कौन पढ़ेगा। तो ऐसे जैसे पता चला, तुरंत उन्होंने उसको गंगा में फेंक दिया, यानी नदी में गिर गया वो नीचे चला जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। तो महाप्रभु इतने उदार दिल है। एक ही ग्रंथ लिखा था महाप्रभु ने, तो वो भी उन्होंने बहुत बहा दिया गंगा में। लेकिन इसी लीला को जानते हुए श्रील जीव गोस्वामी, हमारे जो 6 गोस्वामी से एक है, उन्होंने देखा कि महाप्रभु ने व्याकरण का जो ग्रंथ लिखा था उसमें भगवान के अलग अलग नामों को लेकर वो ग्रंथ बनाया था। तो ग्रंथ तो बहा दिया, तो जीव गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, श्री हरिनामामृत व्याकरण, उसी संबंधित, और उसमें सभी जो व्याकरण ही सीखना है उसके द्वारा, लेकिन उसमें भगवान के अलग अलग नाम, राम अगच्छत, राम वहाँ गया, और फिर जो भी है वासुदेव, इदम, जो भी है ऐसा कुछ, तो अलग अलग भगवान के नामों को उन्होंने उसमें उद्धृत किया। तो उसको हरि नामामृत व्याकरण कहते हैं। जीव गोस्वामी का एक विशेष ग्रंथ है, क्योंकि वो लीला में तो महाप्रभु ने अपने ग्रंथों को बहा दिया, तो संसार को उसी दर्जे का एक ऐसा एक ग्रंथ रहे, इसलिए उन्होंने लिखा। और कोई प्रश्न? पूछिए। यस, इधर ही। यस, एक मिनट, एक प्रश्न। हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि मायावादियों को महाप्रभु ने तार दिया, महाप्रभु के संग से मायावादी भी भक्त बन गए। हम ऐसा क्या करें कि हम भी थोड़ी भक्ति में प्रगति कर पाए? भक्तों का संग, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। और साधुओं के संग में करना क्या है? नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्णोपदेश करी तारयई जन। तो यही करना है। तो वो साधुओं को, मायावादियों को, वो बाकी साधुओं का नहीं सुनते थे, इसलिए महाप्रभु को खुद ही उनका उद्धार करना पड़ा। लेकिन हम सबके लिए भक्तों का संग अधिक महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद का संग, उनके ग्रंथों को पढ़ना और फिर उसके अनुसार जीवन बिताना और दूसरों को ये उपदेश करना, बस उससे हम शुद्ध हो जाएंगे। और कोई 3 हमारे वैष्णव, माता जी को उधर 3 हमारे वैष्णव जीवन के 3 ही उद्देश्य है, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवदया। तो जीवदया तो आपको इधर रेडीमेड अवेलेबल है। तो बाकी 2 के लिए थोड़ा प्रयत्न कीजिए आप कि नाम के प्रति रुचि हो जाए, तो अधिकाधिक जप करें, या कम से कम 16 गुड राउंड्स, 16 अच्छी वाली माला करें। और इसके अलावा वैष्णवों का संग करके वैष्णव की सेवा करें। वैष्णव का कभी अपराध नहीं करें। अपराध एक ही शब्द में उसका परिभाषा होता है, डिसरिस्पेक्ट, अनादर। तो अनादर न करे, सबको आदर दे। जितना मिथ्याहंकार कम है उतना दूसरों को आदर कर पाएंगे। जितना मिथ्याहंकार अधिक है, अपने ही आदर के बारे में सोचेंगे, तो जिससे अपराध हो जाता है, तो वो नहीं करना है। तो नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवदया तो है ही। वो आपको जीवदया में लगा देंगे, क्योंकि वो नाम ही है जीवदया, मूर्तिमान जीवदया, जीवदया के दास है वो। तो आपको जीवदया के लिए बहुत स्कोप देंगे वो, बस उनके पद चिन्हों पे चलते रहिए। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद, कृष्ण। प्रणाम। हम बोलो बस। प्रभु जी, आपने जो कहा कि महाप्रभु ने जो प्रेम के, कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट किए, तो हम ये कैसे पहचान सकते कि वो शुद्ध भक्त के लक्षण या सहजिया है? महाप्रभु के? नहीं, महाप्रभु अन्य लोगों में। अन्य लोगों। हाँ, तो इसका शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन है कि जो भाव भक्ति पे पहुंचता है उसके 9 लक्षण बताए गए। अव्यर्थ कालत्वम, मान शून्यता, फिर नाम गाने सदा रुचि, प्रीतिस्तद वसति स्थले, आसक्तिस्तद उपाख्याने, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। आप
श्री नेक्टर ऑफ डिवोशन ग्रंथ के 18वें अध्याय की शुरुआत में ही पहले पन्ने पे आपको ये 9 लक्षण बताए गए कि वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते जो भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच गए। अव्यर्थ कालत्वम, नाम गाने सदा रुचि, हरि नाम लेने में उनको हमेशा रुचि रहती है। ऐसे नहीं कि ये क्या हो मध्य रात्रि में नहीं लेना है, नहीं, वो हमेशा तैयार रहते। आसक्तिस्तद उपाख्याने, भगवान का गुणगान करने के लिए, बोलने के लिए, कीर्तन करने के लिए उनको बहुत आसक्ति होती है। प्रीतिस्तद वसति स्थले, भगवान की जो जो लीला स्थलियाँ है उधर रहने के लिए उनको बहुत प्रेम होता है, प्रेम उमड़ आता है। मान शून्यता, अपने मान की कभी भी आशा नहीं करते। आशा बंद, होप अगेंस्ट होप, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों आए, कितने भी संकट क्यों ना आए, वो कभी भी अपने होप, आशा को खोते नहीं कि कृष्णा जरूर मेरी रक्षा करेंगे, जिस कृष्ण जरूर मेरे ऊपर कृपा करेंगे, कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल, ये उनका भाव रहता है। तो ऐसे उनके 9 लक्षण है, उसके द्वारा समझ में आता है कि वो असलियत में भक्त हैं। जो सहजिया है उनमें ये लक्षण नहीं रहेंगे, वो तो चीप क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं उसको। एक घड़ियाल के आंसू, घड़ियाल के आंसू आते हैं क्या? वो दूसरों के आंसू, आंखों से आंसू बहाते हैं। जैसे गजेंद्र जैसा शक्तिशाली जो जानवरों का राजा, उसके भी आंखों से आंसू लाए, वो घड़ियाल होता है। लेकिन घड़ियाल के टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो होते नहीं। तो ये सहजियों के जो ऐसे अश्रु प्रवाह होता है उसमें कुछ ताकत नहीं, दम नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण को बहुत सहज से लेते हैं, सहज से नहीं ले सकते कृष्ण को। वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा's ग्रेटनेस एंड देन हिज स्वीटनेस, कृष्ण की महानता पहले, फिर उनकी मधुरता, ये हम सबको समझना चाहिए। और उनको, लेकिन ये जो सहजिया है महानता के बारे में कुछ जानते नहीं ज़्यादा, और उनकी मधुरता के बारे में बहुत कुछ सहज रूप से लेकर वो गलत व्यवहार करते हैं। ठीक है, यस, हाँ, हरे कृष्ण। अगर ये चल रहा है तो दीजिए उनको। प्रभु अभी तक तो बहुत कलयुग आगे गए, आगे नहीं गया, अभी तो शुरुआत है। नहीं 5000 साल ही हुए और 4,27,000 साल बचे हैं कलयुग के। वो दिन देखने के लिए हमारी आंखें खोली न रहे। नहीं वैसे नहीं, त्रेता युग से ये साथ में लीजिए, पास में लीजिए। नहीं, मुझे दिखा सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है। और किसी का प्रश्न? यस, पीछे। हरे कृष्ण। इनका दीक्षा दी थी क्या? हाँ, यस, और सपने में दी थी। अगर आप पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि सापड़ विलय वाटा जाता गंगा स्नाना, मंत्र हा दिला रामकृष्ण हरि, राघव चैतन्य केशव चैतन्य, मंत्र हा दिला रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण हरि। तो ये बचपन में मैं रोज गाता था, सदगुरु राय कृपा मज के लिए, वो सब गाता था। मुझे पता ही नहीं था क्या है इसका मतलब है, क्योंकि हम वारकरी संप्रदाय में जन्म हुआ था, बचपन से विट्ठल भक्ति पूरा ओतप्रोत थी, तो गाते थे हम, लेकिन पता नहीं था। लेकिन प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि जो बोल रहे हैं वो राघव चैतन्य केशव चैतन्य, केशव यानी कृष्ण, कृष्ण चैतन्य, उनके द्वारा मेरी दीक्षा हुई। और उन्होंने कौन सा मंत्र दिया? मंत्र हा दिला राम कृष्ण हरि। तो वो राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि। तो इसमें क्या है? राम है, कृष्ण है, हरि, और वही तो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे की जो कीर्तन शैली है वो हूबहू तुकाराम महाराज ने दी है। वैसे ही धोती कुर्ता पहनना, कंठी माला पहनना, करताल, मृदंग, ये सब महाप्रभु ने जो किया है 500 साल पहले, वही करीबन 300-350 साल पहले तुकाराम महाराज ने देहू से शुरुआत करके फिर आगे वो पूरा महाराष्ट्र में फैल गया। तो इसके पहले ऐसे कौन संत थे कि जो इस पद्धति से कीर्तन कर रहे थे? नहीं, बाकी थे, अभंग वगैरह किए जा रहे थे, लेकिन ये जो है ये एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ही है। तो तुकाराम महाराज का दीक्षा चैतन्य महाप्रभु से सपने में हुआ है। आमने सामने मिले? आमने सामने नहीं, क्योंकि प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु तो 1534 में चले गए और तुकाराम महाराज का जन्म 1608 में हुआ। तो बीच में करीबन 70 साल का अंतर है करीबन। तो आमने सामने नहीं, लेकिन गुरु के अर्थात वो जो स्वप्न में आदेश हो रहा है वो तो साक्षात ही एक तरीके से,
लेकिन महाप्रभु इस धरातल पे नहीं थे। यस, और कोई? यस, इनको इधर इस तरफ। अभी अचानक इतने सारे प्रश्न कैसे आ गए, मुझे ही थोड़ा आश्चर्य लगा है। वो उधर इनको दीजिए, पीछे नहीं। ऑन कीजिए। हेलो 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 नहीं, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। टेस्ट करता हूँ। जय श्री ये हमारा कृष्ण। ट्रेनिंग का प्रोग्राम का। प्रभु जी श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा। तो आपने सारी इतनी डिग्री लिए, हाँ? कितने डिग्री हाँ आपने पढ़ाई करी इतनी अच्छी, हाँ। जी इंजीनियर बने, तो आपने भक्ति का मार्ग क्यों चुना? क्योंकि इसकी तो खोज में था मैं करोड़ों जन्मों से। अच्छा, अब ये बचपन में मुझे समझ में आ गया कि इस जन्म में कुछ तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू। और फिर इस्कॉन के भक्तों को देखे वाला यही तो अभी समय है, इनके पीछे ही चलना है। मैं जो विष्णुप्रिया मेडिकल पे जाता था, विष्णुप्रिया मेडिकल, विष्णुप्रिया विष्णुप्रिया मेडिकल हड़को में है वो अपना था। मेडिकल शॉप उनका है। तो फिर तो वहाँ पे जाता था। प्रभु जी यहाँ पे बैठे वाले हैं। तो नहीं, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ही पूछिए। नहीं, मेरे लिए प्रश्न तो हो गया मेरे लिए। मैंने उनको देख के ये मार्ग चुना। ठीक है, अच्छा है, चलते रहिए इस मार्ग पे। सफ़र थोड़ा लंबा होगा लेकिन सफरिंग से बचना है तो ये सफ़र करते रहिए आप। उधर माता जियों का कुछ तो था, इधर इधर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि बोलते हैं कि महाप्रभु जो है वो कपटी पावन नहीं है, तो फिर जो मायावादी है वो सबसे बड़े कपटी होता है, तो फिर उनका कैसे उद्धार हो गया? नहीं, ऐसे तो सभी जीवात्मा शुद्ध भक्त ही है भगवान के, लेकिन क्योंकि उन्होंने संग कपटियों का किया है, कपटी तत्व ज्ञान का किया है, इसलिए वो कपटी बन जाते हैं। हृदय से तो हर जीवात्मा शुद्ध भक्त ही है, लेकिन ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का बहुत लेयर्स, बहुत आवरण चढ़ चुके हैं उसके ऊपर। तो हर कोई कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो महाप्रभु उनको दे सकते हैं, महाप्रभु दे सकते हैं, हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें प्रयत्न करना नहीं चाहिए। महान भक्तों को, सीनियर डिवोट्स को बोलना चाहिए कि थोड़ा ये मायावादी का उद्धार कीजिए, हम तो नहीं कर सकते। तो क्या फिर हमारा भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं, आपका तो उद्धार हो गया ना, आप इधर बैठिए आप हो गए उद्धार। अभी आप दूसरों का उद्धार करने बाहर निकलना है आपको, आपका हो गया उद्धार। उद्धार हो गया नहीं इसका मतलब ये नहीं अभी इस्कॉन छोड़ मत दीजिए, आते रहिए इधर लेकिन यहाँ आते रहने से उद्धार हो गया आपका। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न? ये माता जी का। हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। हम प्रभु जी, आपने बताया कि वृंदावन की फ्रीक्वेंसी से जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तब हम वृंदावन को समझ सकते हैं। तो किस तरह से हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको डेवलप करें वृंदावन? हाँ, हमें बस प्रभुपाद के पद चिन्हों पे चलना है, क्योंकि संसार के ये बहुत बड़े ब्रजवासी है, क्योंकि उन्होंने वृंदावन को संसार भर में स्थापित कर दिया। वृंदावन को इन्होंने संसार भर में स्थापित कर दिया, और वेस्ट वर्जिनिया में तो स्थान उसका नाम ही हो गया नव वृंदावन, न्यू वृंदावन। तो प्रभुपाद ये सबसे बड़े, जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को वृंदावन से इतना लगाव हो गया था, लेकिन प्रभुपाद से एक तरह से अनुग्रह प्राप्त करने का जो उनको बताया गया कि आपको न्यू वृंदावन जाना चाहिए, तो उनको थोड़ा बुरा लग रहा था कि अमेरिका फिर से वापो गंदा इंद्र तृप्ति वाला देश फिर से कैसे जाओ। तो बहुत सारे साधुओं ने वृंदावन के उनको बताया कि चिंता मत कीजिए, आप जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ स्वामी प्रभुपाद ने नया वृंदावन स्थापन किया है, तो आप वृंदावन को छोड़ के जा नहीं रही है, यहाँ के वृंदावन को छोड़कर वहाँ के वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, तो वृंदावन ही है वो। तो वहाँ वृंदावन प्रभुपाद के पदचिन्हों पे चलकर ही होता है, क्योंकि तिष्ठन व्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम, जो पूरे शास्त्रों का निचोड़ रूप गोस्वामी पाद ने श्री उपदेशामृत में दिया है, और ये 11 श्लोकों का भी निचोड़ 8वें श्लोक में है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। तो यह सारों का भी सार है पूरे वेद शास्त्र का। तो उसमें क्या कहते हैं कि तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का बहुत अच्छे से कीर्तन करना चाहिए। उससे क्या होगा? स्मृति होगा, अनुस्मृत्यो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, हमारी रसना, हमारी जीवा हमारे मन के साथ एकत्रित होकर हरि नाम में लगनी चाहिए। हमें वृंदावन में रहना चाहिए। तिष्ठन व्रजे, व्रज में रहो, तद अनुरागी जनानुगामी, और वृंदावन के जो निवासी है ब्रजवासी उनके पदचिन्हों पे चलो। तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम,
इसी तरह से अपना पूरा समय बिताओ। कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम, ये उपदेश जो दिए गए उपदेशामृत ग्रंथ के अंतर्गत इसका पूरा सार है। तो 8वां श्लोक आप पढ़िए उसको। तो ब्रजवासियों के पदचिन्हों पे हमें चलना है। तो फिर वृंदावन की फ्रीक्वेंसी, ब्रजवासियों की हृदय की धड़कन वो वृंदावन से ही मैच करती है, इसलिए वृंदावन में वो प्रकट होते हैं। तो ऐसे ब्रजवासियों के पदचिन्हों पे चलेंगे तो हमारी भी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी ब्रज के साथ। तो वो प्रभुपाद हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने न तो वृंदावन में रहे, वृंदावन को पूरे संसार में स्थापना की उन्होंने, तो इसलिए हमें प्रभुपाद के पदचिन्हों पे चलना है। और रूप गोस्वामी पाद तो है ही हमारे, क्योंकि वो रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, जो राधा रानी की 8 सखियां हैं, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, चित्रा, चंपक, लता, तुंग विद्या। तो ये 8 में प्रमुख है ललिता, और ललिता की जो मंजरियां है उनमें प्रमुख है रूप मंजरी। तो हम रूप मंजरी जो रूप गोस्वामी के साधक के रूप में आए, उनके ही जो ग्रंथ है उसके अनुसार ही हमारा जीवन जी रहे। तो हम तो बस पक्के वृंदावन वासी ही बनेंगे। और वृंदावन में भी राधा रानी के गौड़ीय है हम। जो शिव जी की आराधना करते हैं उनको शैव कहते हैं, जो दुर्गा की आराधना करते हैं उनको शाक्त कहते हैं, जो गणपति की आराधना करते हैं उनको गाणपत्य कहते हैं, जो विष्णु की आराधना करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो कृष्ण की आराधना करते हैं उनको कार्ष्णीय कहते हैं, जो राधा रानी की आराधना करते हैं उनको गौड़ीय कहते हैं। और हम कौन है? गौड़ीय है, ब्रह्म माधव गौड़ीय गुरु शिष्य संप्रदाय। तो हम तो पक्के राधा रानी के भक्त हैं, अगर आप प्रभुपाद के पदचिन्हों पे चले तो। इसलिए प्रभुपाद के चरणों को कोई नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर पक्का गौड़ीय बनेंगे, पक्का ब्रजवासी बनेंगे, उसमें तो तनिक भी कुछ संशय नहीं। इधर उधर भटकते नहीं रहना चाहिए। कुछ कुछ इस्कॉन के, एक सैफरन ब्रह्मचारी इस्कॉन का जो श्री संप्रदाय के अंतर्गत 108 दिव्य देशम में से जो 106 कर सकते हैं इस संसार में शरीर में रहते हुए, फिर 107वां कौन सा है, हाँ श्वेत द्वीप है शायद, और 108वां वैकुंठ ही है। हाँ, तो ऐसे करके वो 2 तो अभी इस शरीर में नहीं जा सकते, लेकिन 106 के 6 उसने दिव्य देशम कर लिए। क्या पड़ी है? हाँ, प्रभुपाद के चरणों को छोड़कर क्यों ऐसे सब करते बैठना है? किसने बोला है? यहाँ तक कि हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर महाशय क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। तीर्थ यात्रा भटकते रहना इधर उधर अकेले, केवल मनेर भ्रम, मन का भ्रम है ये। अर्थात जहां महाप्रभु गए हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वो स्थानों को मैं जरूर भेंट देना चाहूंगा प्रणयी भक्तों के साथ। गौरामार जे सब स्थाने कोरिलो भ्रमण रंगे, से सब स्थाने हेरी बोआमी प्रणयी भक्त संगे। तो बस महाप्रभु जहां जहां गए वहां मैं जाना चाहूंगा प्रणयी, जो प्रेम करते हैं महाप्रभु से, ऐसे भक्तों के साथ। नहीं तो तीर्थ यात्रा भ्रमण करने में कुछ पॉइंट नहीं है। तो हमें प्रभुपाद के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। पक्के जो प्रभुपाद अनुयायी है तो वो जरूर भगवत धाम जाएंगे और वो ब्रजवासी ही बनेंगे, गोलोक वृंदावन के अलावा किधर भी नहीं जाएंगे। और हमारे यही सब शास्त्र बताएंगे, जैसे शिव बृहद भागवतामृत आप पढ़ सकते हैं, जिसमें गोप कुमार की कथा आती है। तो गोप कुमार ये स्वरूप है, स्वरूप नहीं, स्वरूप। ये राधा रानी के गोत्र में, राधा रानी के परिवार से आते हैं, और वो इस संसार में जब आते हैं तो उनके कृष्ण साक्षात उनके गुरु के रूप में आते हैं और उनको उपदेश करते हैं। बाद में राधा रानी एक दिन गोप कुमार को जब वृंदावन पहुंच जाते, गोलोक वृंदावन, उनको बुलाती है, बोले जाओ तुम अभी वो जन शर्मा है ना पृथ्वी के ऊपर, उसके उद्धार के लिए तुम गुरु बन के जाओ। तो देखिए राधा रानी स्वयं भेज रही है गोप कुमार जो स्वरूप है अपने परिवार वाले को किसी के उद्धार के लिए। तो बस हमें ये परंपरा में ही ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में जो चिपके रहेंगे आजीवन, वो तो व्रजवासी ही बनेंगे, गोलोक वृंदावन ही जाएंगे और किधर भी नहीं जाएंगे। ठीक, ओके हरे कृष्ण। एक लास्ट प्रश्न। हरे कृष्ण बोलिए। हम वो सुबह जो आपने नाम के बारे में बोले थे, ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल, उसका थोड़ा व्याख्या और विस्तार से बोल दीजिए। हाँ? और एक बार बता दीजिए फिर से। तो ठीक है, तो जैसे कॉल होता है तो कॉल में जो टावर होता है उसके पास में अगर हम तो आता है बराबर, नहीं तो फिर थोड़ा गड़बड़ होता है। तो कृष्ण के रेंज में ही रहना चाहिए, कृष्ण भक्ति के, कृष्ण की सेवा से, ये भक्तों के बीच में ही सेवा मिलेगी, तो उसके दूर नहीं जाना है, नहीं तो जब अकेले से मुश्किल हो जाएगा। एकाकी अमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन है। और दूसरा होता है कि अगर आपका कॉल यानी मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो उसी तरह से हम कभी कभी थक जाते हैं और जब करना ही वो नींद आ जाती है, हरे कृष्ण फिर हम थक जाते हैं। तो जैसे कॉल यानी फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। फिर तीसरा मैंने बताया था कि ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल। ऑडियो कॉल में
उस व्यक्ति के वचन, कितना हम उस व्यक्ति को जानते हैं, उसके अनुसार उसका जो आशय है, उसका जो मनोगत है, वो समझ सकते हैं। अन्यथा वो कोई अपरिचित व्यक्ति है तो हम समझ नहीं पाते। तो कृष्ण को जानना, वेद शास्त्रों को पढ़ना, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी वो ऑडियो कॉल अच्छा होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने ये ग्रंथ लिखे हैं पूरे संसार के सभी जीवात्माओं को, सभी लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की प्रेरणा देने के लिए। तो अगर हम हरे कृष्ण प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो ऑडियो कॉल में दिक्कत आ जाएगी। और वीडियो कॉल शुद्ध भक्तों के लिए, जिसमें वो भगवान के नाम में जो रूप है, गुण है, लीला है, ये सब का वो अनुभव करते हैं। प्रभुपाद 12वें अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में भगवद्गीता में कहते हैं, व्हेन अ डिवोटी चैंट्स हरे कृष्ण, कृष्णा एंड हिज इंटरनल पोटेंसी श्रीमती राधा रानी डांस ऑन द टंग ऑफ द चैंटर। जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो हरे यानी राधा रानी, जैसे हम हरि बोल में जंप लेते हैं ना, हरि बोल, तो राधा रानी आपके जीवा के ऊपर छलांग लेती है। और जब बोलते कृष्ण या राम तो कृष्ण छलांग लेते हैं। तो दोनों नृत्य करते हैं हमारे जीवा के ऊपर। हमारी जीवा ही वो रसलीला का एरेना बन जाती है, उसका वो बन जाती है। कल उसके सुबह के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो इस तरह से हम भगवान के साथ कम से कम ऑडियो कॉल तो करें। ठीक, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की